latest amendment in TDS and TCS provision under Income Tax Act. And on this subject, our brother Sangam Agrawal ji is with us. I welcome Sangam ji. I welcome also Rajiv Kohli ji and Sunil Dhamija ji and all the esteemed attendee. As Sangam Agrawal ji is not a new, but he is a very first time to our study circle. So it is my duty to introduce him very briefly. Sangam Agrawal is a seasoned tax practitioner and a fellow member of ICI, and he has done his LLB in 2014 and also qualified DISA along with certificate course in concurrent audit from ICI. He has also acted as co-opted member of Corporate and Allied Laws and Corporate Governance Committee of NIRC of ICI during 2019-20. He has more than 12 years of rich and profound experience in the field of taxation, both direct and indirect, and advisory. He makes representation for a widely diversified cross section of industries before authority for advance ruling, CIT appeal, ITAT, and other appropriate forums. Sangamji has previously worked with IFCO, Tokyo General Insurance Company Limited, as a manager in finance and accounts. He is currently the managing partner of a chartered accountant firm now in practice. He also a visiting faculty of ICI and have spoken on different forums of ICI. This is the brief profile of today's our very learned Sangam Agrawalji's profile. I request and welcome again and request over to you, sir. संगम जी सर। सबसे पहले धन्यवाद राजेश जी, मुझे मौका देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I want to express a sincere thanks from bottom of my heart to providing me opportunity to discuss the knowledge and experience whatever I have in this special topic. Sir, still I feel myself as a student of tax because day by day I am learning the taxation part, because as we know that every week or every month we have a latest some changes in the taxation part. So I feel myself still a student. I am not the expert on this topic, and today I am here to just discuss with you whatever I have learned in my past years. And friends, I assure you that after today's session, you will get some new points for thought for your mind, and you definitely compelled to think over on this point, and you definitely see these kind of points in your practice, and this will definitely help you to ease out your practice. My prime possibility, I will try my best to give you some kind of good thoughts for your mind, so that it will help you in your practice also. So friend, with this note, I again express sincere thanks to the entire management team of Rajesh Agrawal ji for providing me opportunity, and all the convener and deputy convener of the study circle. With this note, I am sharing my presentation here now. Sir, it is visible, Rajesh sir? Yes sir, yes sir. सो दोस्तों, आज का हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि हम लेटेस्ट अमेंडमेंट को डिस्कस करें, जिसमें जैसे कि हमको पता है 1 जुलाई 2021 से सेक्शन 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज कमिंग, जो अपने आप में कहीं ना कहीं रेप्लिका है सेक्शन 206 C1H का, जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ रिसिप्ट पे है, सेल ऑफ गुड्स पे एक तरह से। तो कहीं ना कहीं हम उसको समझेंगे। साथ में फ्रेंड, उसके अलावा सेक्शन 206 AB जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है, जो कि सारे ही सेक्शनों पे एप्लीकेबल होने वाला है, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने सेशन ऐसे डिजाइन किया है कि जो सेक्शन हम ऑलरेडी डे इन डे आउट पढ़ते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो उन सबको भी हम जान के चलें। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हम रूटीन प्रैक्टिस के अंदर उन सब चीजों को ओवरलैप कर जाते हैं, और उन ओवरलैप करने की वजह से समटाइम वी फॉरगेट दैट। एंड फ्रेंड्स, ट्रूली स्पीकिंग, नाउअडेज there are lots of prosecution cases by the income tax department on the SICs for non-deduction of TDS. Earlier the limit was 1 lakh rupees, now the limit is 5 lakh rupees. Therefore it becomes paramount important to know the TDS provision and their compliance. As I earlier said, it is very difficult and it's not practical possible to non-comply the TDS compliances, because prosecution are there and department are very strict in the compliance of TDS.
So I will keep in mind that we should focus on the latest part. Okay, I will go into all the provisions and try to discuss the latest provision in all these sections. With this note, friends. So our today's agenda will be analysis of TDS provision, including TCS, latest amendment, and how Section 206 AB, which is going to be become the one of the break-winning provision in all the TDS provisions. We will discuss in detail. So friends, these are the some index of the section which we will discuss in today's session. So my prime focus to discuss on such section where there is any kind of amendment. So I will discuss that, and where there is any kind of clarification required, I will try to keep in mind that thing also. So moving this is a normal section. We all know this section. I'm not going the detail of naming of this section. Like section 194M, and this is a section which is already applicable from 1st September 2019. So some of us are might be not aware about this section. So we will discuss and then let you know the how its applicability will be. And section 194N, this is another very good amendment made in 1st September 2019 to stop the black money. Section 194O on the e-commerce operator is already applicable from 1st October 2020. 194Q, as I told you, it is going to be applicable from 1st July 2021. 206, 206 AA, 206 AB. This is another section we will discuss in detail, because this is going to change the all TDS provision somehow, and this section is going to make a higher rate of TDS. Whatever the actual rate mentioned in the section, it will not apply. The higher rate of TDS will be applied. We'll discuss in detail. And similar section in TCS also, 206 CCA. As section 206 AB is in TDS, similar section 206 CCA in the TCS. Moving ahead, friends, section 192 and 192A, salary. Some of us friends are asking about the TDS on salary. We discussed that pointer also. So friend, 192 belong to TDS, and here we need to do TDS as per the slab. Nothing new, friends, here. The important point to note here, TDS should be deducted at the time of payment of salary. It should not be deducted based upon the book. Okay. In general section, we will find we need to deduct TDS payment or credit, whichever is earlier. But in case of salary, we need to deposit TDS based upon the time of payment. Time of payment means whenever we make payment to the employee, accordingly our TDS liability will arise. So friends, these are small thing. I am not going to detail in this. I am just going to typical part in this. Like as you know that house property income and other source income can be included in the salary. Okay, and we can claim the deductions from the employer and all this time. So important point is here, friend, to discuss here that like HRA. Can we claim HRA? Sometimes we forget to provide the documents to our employer, and accordingly, employer not provide us the such exemption like HRA, LTC, suppose medical reimbursement earlier regime. So, are this kind of exemption can we claim when we file our income tax return? So, friends, answer is no. So, friends, Income Tax Act make assessing officer employer as a quasi assessing officer, and he has the liability to examine your documentation, and based upon you allow the exemption part in your form 16. Then only you claim such kind of exemptions. Otherwise, you cannot claim such exemption in your ITR. This kind of thing generally asked by some SICs because many times they forget to provide the documentation part. And when we talk about the deduction part, friends, like ATC, ATD, as we all know that we can claim such deduction. If you're not claiming in Form 16, we can claim in at the time of filing ITR 2. So nothing new in this to this. So going beyond this, friends, another good question for you: the payment made to doctors, should we deduct TDS under section 192 or 194J? So friends, as you know that there are many hospitals, nursing homes, those who are paying, those who have hiring the doctors as a permanent staff or as a visiting faculty. In that case, do we need to deduct TDS under section 192? Even then, we have employed them, or whether section 194J is applicable. So when this is very common question and asked by many professionals, so I have added this question with some reference of some Bombay High Court decision, so that we can have understanding of this important point here. So friends, as per the decision made in the Bombay High Court Grand Medical Foundation, Ruby Hall Clinic, also known as Ruby Hall Clinic,
The Bombay High Court defined कि what is contract for services or contract of services. In case contract of services, in that case, section 192 cannot be applicable because there is no employer-employee relationship. Or until or unless there is no employer-employee relationship, TDS cannot be deducted under section 192. Therefore, any payment made to the doctor, TDS should be deducted in under section 194J only. So friend, it is clear to all of you. Moving ahead, any payment made to the MP, MLA, Minister, Chief Minister shall attack section 194, 192 or not. कि हम जो भी पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पेमेंट करती है एमएलए एमपीस को, जो उनको सैलरी मिलती है, एक तरह से उनकी सैलरी फिक्स होती है, वो पैसा जो मिलता है उनको वो 92 में टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा बेसिकली. अब तक हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी उनको पैसे मिलते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. जो भी उनको सैलरी का पार्ट मिलता है वो उनके हाथ में टैक्सेबल होता है, और उसके अलावा जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं बेसिकली वो सारे सेक्शन 10 में आपके एग्जम्प्ट होते हैं. तो फ्रेंड, जो भी उनको सैलरी मिलती है तो वो 192 में टैक्सेबल नहीं होती, मतलब सेक्शन 60 में टैक्सेबल नहीं होती. 60 में टैक्सेबल ना होने की वजह से 192 में उसका टीडीएस नहीं करता. ये इनकम आपको अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है. उसका रीजन क्या है? दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और somehow they have elected through election, and there is no control over employer-employee relationship, because government of India या फिर PMO office cannot control their working, their way of working and all. Therefore, there is no employer-employee relationship, and accordingly, TDS shall not be deducted under section 192. Instead of this, TDS is deducted under section TDS will not deduct because it is taxable under other sources. Section 56 will apply there. So friends, these are the small two important thing I want to discuss here. Moving ahead, friends, as you know that from संगम, आप थोड़ा सा पीछे बैठिए, थोड़ा इको हो रही है आपकी आवाज. अब तो बेटर है सर? हाँ, अब बेटर. Okay. Sir, from April 1st, 2021, as we know that new section has been introduced from section 115 BAC. So friends, it is also known as new tax regime. Earlier, we have another tax regime in which we can avail lots of deduction and exemptions. But Government of India introduced new tax regime, which is also known as new tax regime, in which such deduction and exemption are not available, and we need to pay tax by a different slab rate. Okay, and this so whatever ITR we will file in current period, I'm sure that in June, July, August, upcoming period, so we have to apply section 115 AB before filing such ITRs. Moving ahead, friends. So under this new section 115 BAC, as I told you, going to be applicable from 1st April 2021. Okay. अभी आपने एक बोला कि पेमेंट जो है 194J में कटेगा उसका. मैं ये पूछना चाहता हूँ सिमिलर क्वेश्चन. एक इंडिविजुअल, एक प्रोफेशनल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना अमाउंट पे कर सकता है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज अ फीस? सैलरीड है वो भी सर. जो वो ठीक है सर, जो वो इंडिविजुअल है सर, क्या उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है सर इंडिविजुअल की? नहीं, वो एम्प्लॉई है. उसका तो जस्ट इज अ एम्प्लॉई और इज अ अदर सोर्सेज से इनकम है, रिटायर्ड आदमी है वो. ओके, तो सर इस केस में सेक्शन 194J, सेक्शन 194J तो एप्लीकेबल होगा नहीं सुनील सर. इस केस में सेक्शन 194J एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 194M एप्लीकेबल होगा सर. सेक्शन 194M कहता है M. यस सर. M में क्या लिमिट है सर? M में लिमिट है 50 लाख रुपए की. अगर एक साल में हम 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट करते हैं तो उस केस में टीडीएस काटना है सर 5%. तो इसका मतलब ये है कि टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एनी इंडिविजुअल वांट्स टू पे फॉर हिज मैनेजिंग हिज अफेयर्स और अदर थिंग, उसके पास काफी वेल्थ है, तो वो अपने उस वेल्थ का, जैसे ही इज अ वेरी वेरी सीनियर सिटीजन, वो अमाउंट पे करता है, 5 लाख रुपया पे करता है. इज दैट सब्जेक्ट टू टीडीएस? आई फील नो. व्हाट इज योर ओपिनियन? यस सर, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस सर, because for section 194J there is a limit of turnover of 1 crore rupees and professional is 50 lakh rupees. Therefore section 194J is not applicable, and only section 194M is applicable when payment is more than 50 lakh rupees. Okay sir, therefore 194M
194M was also introduced 2 years before. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will cover in my presentation, sir. Please do touch this point also. Definitely. Uh, So friends, I was discussing with you section 115 BAC. As I told you, it is already applicable from 1st April 2021. So whatever ITR we will file it up in this period, we have to consider this section. And friends, as I told you, in new tax regime, there is no exemption or deduction are allowed except few, like traveling allowance of specially abled person, conveyance expenditure, cost of travel on tour. जैसे जो हम लोग ऑफिशियल टूर पे जाते हैं उनका कोई रिम्बर्समेंट मिलती है आपको, तो वो भी अलाउड है आपको। कोई आपका कन्वेंस एक्सपेंडिचर है, दैट मीन लोकली आप कन्वेंस कम्यूट कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस से, जो कहीं ना कहीं पहले भी आपका अलाउड था, वो भी आपका अलाउड है, वो भी आपके यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड, ईपीएस, एनपीएस, जो आपको 7.5 लाख रुपए की लिमिट है आपकी, उस अमाउंट तक अभी भी अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो तब भी इन न्यू टैक्स रिजीम वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी और संगम भाई, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। लाइक 80C 18 दिया गया। संगम भाई, संगम जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इनका मेरे को नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, कनेक्शन खराब हो गया इनका है, कनेक्शन ही खराब करा, पिक्चर भी फ्रीज हुई है। हाँ, पिक्चर फ्रीज होगी, नहीं आवाज भी नहीं आ रही है अभी तो। उनको फोन जल लगा दो। हाँ, मैं लगा देता हूँ। आउट ही हो गया, वो आ जाएंगे दोबारा। हेलो, हाँ जी संगम भाई, वेलकम बैक। सॉरी सर, वो नेटवर्क चला गया था एकदम से। आपका अभी भी नेटवर्क ना काफी स्लो है सर, वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। अच्छा, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, मेरी ब्रेक हो रही है आपकी अच्छा। आवाज बीच बीच में। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो बोलो सर। सर, मैं क्या 1 मिनट का होल्ड करके अभी जगह चेंज कर सकता हूँ? हाँ, प्लीज 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 करो, प्लीज सर करो, होल्ड करो, बिल्कुल करो सर, चेंज करो, कर लो सर, करो। सर, मेरी आवाज आ रही है सर अब? यस सर, यस सर। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माइक की तरफ आ जाइए बस। अब ठीक आएगा सर? अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है। हाँ, ठीक है। So friends, as I told you, कि exemption and deduction are not allowed, okay, and apart from these, some of them are allowed. And friends, including laws on self-occupied house property. This is one of the major change, friends, I want to discuss here. कि जो हम लोग जनरली सैलरी की इनकम में क्लेम करते थे कि जो हमको हाउस प्रॉपर्टी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम 2 लाख रुपए तक का लॉस क्लेम करते थे, तो वो चीज आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है न्यू टैक्स स्कीम के अंदर। तो जो एक मेजर चेंज है आपके समझने के लिए यहाँ पे, कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता था, जिसके हम बिजनेस में हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसके में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा आपको। इसमें एक चीज और नहीं है हमारे साथ फ्रेंड, अगर आप सैलरी की इनकम है, अगर आपकी इफ यू हैव इनकम अंडर हेड सैलरी,
तो उस केस में आप एवरी ईयर यू कैन ऑप्ट कि जो भी आपकी ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने की, उससे पहले आप चेक कर सकते हो कि आपको न्यू स्कीम में जाना है या आपको ओल्ड स्कीम में जाना है। ओके। अब फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम अपने एम्प्लॉयर को क्या डिक्लेरेशन दें, न्यू स्कीम की या ओल्ड स्कीम की। तो फ्रेंड्स आप अपने एम्प्लॉयर को कोई भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, आप पे ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा कि जब भी आपको आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आप एज पर न्यू स्कीम और एज पर ओल्ड स्कीम आप अपने आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और आपके एम्प्लॉयर पर कोई भी टीडीएस की एडिशनल लायबिलिटी नहीं आएगी। सपोज आपके एम्प्लॉयर ने ओल्ड स्कीम से आपका टैक्स काट लिया और आपने न्यू स्कीम से आपने अपनी आईटीआर भरी और उसमें आपने एम्प्लॉयर ने कम टीडीएस काटा, तो उस केस में एम्प्लॉयर का ऑप्शन है तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और उसको साथ में उस पर कोई भी टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगी। बट इन केस अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, दोज इंडिविजुअल्स आर फाइलिंग इनकम अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, उनके पास ऑप्शन क्या है कि उनको एक बार अगर उन्हें ऑप्ट आउट कर लिया तो दे अगेन कैन नॉट ऑप्ट इन। इस बात का कहने का मतलब ये है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अगर उन्होंने न्यू टैक्स सीजिंग ऑप्ट कर ली और 22-23 में उन्होंने ऑप्ट आउट कर ली, तो अगेन दोबारा से 23-24 के अंदर वो न्यू टैक्स सीजिंग ऑप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बड़ा ही केयरफुली चेक करना है कि हमें कौन सी टैक्स न्यू टैक्स सीजिंग या ओल्ड टैक्स सीजिंग कौन सी टैक्स सीजिंग हमें ऑप्ट करनी है, जिससे कि हम एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग कर सके और एक अप्रोप्रिएट टैक्स हम दे सके। जो सेक्शन 115 बीएसी की जो ऑप्ट करने की डेट है फ्रेंड, उसकी कोई ऐसी डेट नहीं है। जो भी आपको ड्यू डेट आपके आईटीआर फाइल करने की है, आपको आईटीआर फाइल करते ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि मुझे न्यू टैक्स सीजिंग चाहिए और ओल्ड टैक्स सीजिंग चाहिए। इसमें हमें ऐसा नहीं कि कोई अलग से फॉर्म फाइल करना है, कोई फॉर्म फाइल नहीं करना उसके अंदर हमें अलग से इसके अंदर। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ पार्टिसिपेंट उसको उनको क्लियर नहीं हुआ था वो क्वेश्चन कि सपोज समटाइम एम्प्लॉय कम्स विद अस एंड से दैट सर हमें फॉर्म 16 चाहिए, इवन हिज इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तो उसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उसमें कोई भी टीडीएस लायबिलिटी नहीं है। उस केस में प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो जो जिन इम्प्लॉइज की इनकम टैक्सेबल होती है, जब उनके लिए हम फॉर्म 24Q फाइल करते हैं, साथ में क्या करते हैं उन एम्प्लॉइज का जिनकी इनकम टैक्सेबल सैलरी से कम, इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है, उनको भी उनके पैन नंबर में 24Q में मेंशन कर देते हैं और उन्हीं चलान से लिंक कर देते हैं जिनका हमने टीडीएस काटा होता है। ऐसा करने से क्या होता है वो 24Q में उनकी डिटेल फाइल हो जाती है और हम फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं उनके लिए। अगर कोई ऐसा केस है कि आपका किसी भी एम्प्लॉय का बनता ही नहीं है आपका टीडीएस, उस केस के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का अगर टीडीएस बनता नहीं है आपका अगर, तो उस केस में 10 रुपए का टीडीएस का चलान जमा करके आप 24Q में उस चलान के अगेंस्ट सारे एम्प्लॉय की सैलरीज को लिंक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आया मनोज जी का कि जो हम सेक्शन 192 में टीडीएस काटते हैं, जनरली उसके अंदर हम लोग अदर सोर्स की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये दो तरह की इनकम को कंसीडर करते हैं अपने पास फॉर्म 16 में इसका इम्पैक्ट देने के लिए। इसके अलावा कोई बिजनेस इनकम है या कोई रेंटल इनकम है या कोई कैपिटल की इनकम है आपकी, अगर सॉरी कैपिटल की इनकम है और बिजनेस इनकम है, उसको फॉर्म 16 में कंसीडर नहीं करते। एवरी ईयर क्या होता है डिपार्टमेंट एक अलग से नोटिफिकेशन इशू करता है ऑन टीडीएस ऑन सैलरी, तो उसमें सब चीजें का उन्होंने वेरिफिकेशन दे रखा होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स के अंदर। समटाइम फ्रेंड्स कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर जो हमें क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है क्या वो मैंडेटरी है अगर हमारी कोई भी टीडीएस लायबिलिटी नहीं है उस क्वार्टर में। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी हमारी इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली इफ देयर इज नो टीडीएस डिडक्शन इन सच पर्टिकुलर क्वार्टर। ऑल्दो क्या होता है ट्रेसिस की साइट पे वी नीड टू चेक कि आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इन दिस पर्टिकुलर मंथ स्पेशली पर्टिकुलर क्वार्टर। तो ईयर एंड पे हमको वहां से पिक करना होता है, हमें कोई अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है टीडीएस रिटर्न। So friends, this is a celebrate as per old tax regime and the new tax regime। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओल्ड टैक्स regime में 30 लाख रुपए जब हमारी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर होती है तब 30% टैक्स लगता है। बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स regime जब हमारी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर होती है तब कहीं ना कहीं हमें 30% टैक्स लगता है। तो अगर हम देखते हैं तो जो हायर रेट ऑफ टैक्स है वो कहीं ना कहीं 15 लाख से ऊपर है, बट कहीं ना कहीं उसके उसके बार्टर सिस्टम में हमने एग्जम्पशन और डिडक्शन को लेना अलाउ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड आई थिंक इट इज अ फेयर कंपैरिजन ऑफ बोथ थिंग। मूविंग हेड,
फ्रेंड्स सैलरी के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं कि लास्ट 1 ईयर से देयर इज ए कोविड एंड ड्यू टू कोविड एंड वी आर नॉट एबल टू मूव आउट, so there are many SICs, many employees, those who are eligible to take LTC, leave travel concession, leave travel allowance, but due to COVID they are not able to travel. Because though they are not able to travel, so therefore they are not able to claim the LTA exemption. तो फ्रेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए नई स्कीम लॉन्च करी। इस स्कीम के अंदर अगर अगर आप 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 इस वाले पीरियड के बीच में अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं जिसपे आपने 12% और हायर रेट ऑफ GST आपने पे करा है और उसका इनवॉइस है आपके पास और आपने अगर पेमेंट करी डिजिटली मोड से, उस केस में आप वो इनवॉइस अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं और एम्प्लॉयर उस इनवॉइस के बेस पे आपको टैक्स की जितना भी आपका LTC की एजेंशन बनती है वो आपको अलाउ हो जाएगी। तो फ्रेंड दिस इज ए न्यू थिंग जो अब तक आज तक कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हुई है। तो इसको अभी भी हम लोग टैक्स प्लानिंग का पार्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी 24Q जो हमें फाइल करनी है Q4 की, उसकी लास्ट डेट 30 जून है, तो उसमें भी टाइम है। तो अभी भी हमारे पास प्लानिंग का स्कोप है और कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्कीम आगे भी एक्सटेंड होगी तो फाइनेंशियल ईयर 21-22, बिकॉज आफ्टर सेकेंड वेव अप्रैल में कहीं ना कहीं काफी पीरियड इसमें भी हैम्पर हुआ है। तो दिस इज ए गुड स्कीम, आप इसे एज ए टैक्स प्लानिंग की तरह यूज कर सकते हैं अपनी कंपनीज के अंदर जिस कंपनीज का हम लोग काम करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194 and 194 डिविडेंड ऑन शेयर्स। फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले जो भी डिविडेंड था आपका वो आपका कंपनी के हाथ में टैक्स था, कंपनी के हाथ में DDT की फॉर्म में टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद से ये आपका किसके हाथ में टैक्स हो गया? बेसिकली एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो गया। पहले क्या था, जो अप टू 10 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं था, सिर्फ DDT था उसके ऊपर। 10 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट पे 10% आपको शेयर होल्डर को पे करना होता था अपने हाथ में टैक्स, अदर सोर्स में इनकम शो करके। बट आफ्टर 1 अप्रैल 20 ये हो गया टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय और कहीं ना कहीं हमें अदर सोर्स में इसको टैक्स करना है। कैसे होगा इसके अंदर? जो डोमेस्टिक कंपनी है वो डिविडेंड पे करेगी रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और जो रेजिडेंट शेयर होल्डर है वो अपनी अदर सोर्स की इनकम में उसको इंक्लूड करेगा। और कंपनी अगर वो डिविडेंड 5000 से ऊपर का अमाउंट है तो उस पर 10% का उस पर TDS काटेंगी। ओके फ्रेंड, अगर ये जो 5000 की लिमिट है ये पर कंपनी लिमिट है। अगर सपोज दो कंपनी है SCL और TCS, SCL इज 4000 रुपए का और TCS इज 2000 का डिविडेंड, ऑल्दो मेरे हाथ में तो 6000 का डिविडेंड आया है बट ईच कंपनी ने 5000 से कम का डिविडेंड दिया है। ऐसा होने की वजह से मेरा कोई भी TDS नहीं कटेगा। एंड जैसे सर सेक्शन 194 आपका डिविडेंड और इक्विटी शेयर है, 194K है डिविडेंड ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर के हाथ में, अब जब से वो टैक्सेबल हुआ है तो सेक्शन 194 के अकॉर्डिंगली ऐड हो गया है यहाँ पे आपका। और फ्रेंड इट इज क्लियर, आपकी कोई डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन। ये फ्रेंड मैंने डिस्कस कर लिया आपसे ऑलरेडी। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन 194A। friends, as you know that in earlier all TDS provision there was a common line in all the section कि you are required to deduct TDS when you are liable for tax audit. Okay, and as you know that the limit of tax audit is increasing year by year. Earlier tax audit limit was 1 crore rupees, thereafter it increased to 5 crore and recently it increased to 10 crore. Therefore from 1st April 2020 Government of India make a common amendment in all the TDS provision. Now the limit of tax audit has been removed and new line has been added. In case your turnover is more than 1 crore rupees and in case of a profession your turnover is more than 50 lakh rupees, in that case you are liable to deduct TDS. So friends, simply tax audit has been removed. Now these two limits are there. So please kindly update yourself, friend, because this is the latest thing and still some professional are not considering this while electing TDS. Okay, and moving ahead, friends, in section 194A earlier there was limit of 10,000 rupees in case of interest on fixed deposit. Although the basic limit of 194A is 5,000 rupees, and from 1st April 2019, before that the limit of fixed deposit was 10,000 rupees, and from 1st April 2019 limit has been extended from 10,000 to 40,000 rupees in case of individual
एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन दैट दिस लिमिट इज 50,000 रुपीज। तो फ्रेंड जो भी हम लोग को एफडी पे इंटरेस्ट अर्न होता है, अगर उसके वो अगर 40,000 तक का है तो उस पर कोई भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन वो अगर 50,000 तक का है तो कोई भी उस पर लायबिलिटी नहीं है टीडीएस काटने की, जो कि पहले लिमिट थी आपकी 10,000 रुपए की। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड हम लोग 1 साल की आईटीआर भर चुके हैं बेस अपॉन दिस प्रोविजन, जो हमने फाइनेंशियल 1920 की आईटीआर भरी। तो आई जस्ट मेंशन हियर टू अपडेट यू अगेन। सर फ्रेंड्स 194A में जैसे कुछ एक्सक्लूजन भी है कि किन किन पेमेंट पे हमें टीडीएस नहीं काटना, जैसे इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म कोई पार्टनर को भी इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर भी आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे करती है या किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करती है तो उस पर भी उनको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ क्वेश्चन होते हैं कि सर हम अगर एनबीएफसी से लोन लेते हैं और उनको जो हम ईएमआई पे करते हैं उस केस में हम उनका टीडीएस कैसे काटेंगे। तो फ्रेंड्स ऑल्दो इट्स लुक्स डिफिकल्ट कि जो हम मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं उन ईएमआई के अंदर उनका टीडीएस कैसे करते हैं। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम जो भी ईएमआई पे करते हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का कंपोनेंट होता है, ओके, उस ईएमआई के अंदर। अब वो दोनों होने की वजह से जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है हम उसको बाइफिकेट नहीं कर पाते। ऑल्दो हम जब लोन लेते हैं उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे लोन का शेड्यूल होता है, ओके। तो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं कि मंथली जितना भी उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उस पर टीडीएस काट देते हैं और हम उसको अपने पास से जमा करा देते हैं और क्वार्टरली उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हैं। और उसके बाद वो टीडीएस फॉर्म 16A हम उसको एनबीएफसी को दे देते हैं और एनबीएफसी उतने अमाउंट हमें पे कर देती है। दिस इज द मोडस ऑपरेंडिंग कि कैसे हम ऐसी पेमेंट्स के ऊपर जहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है पेमेंट के ऊपर तब भी हम टीडीएस कैसे काट सकते हैं। फ्रेंड ये चीज सेम चीज आई विल रेफर जब मैं सेक्शन 194 डिस्कस करूंगा टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ओके। ये सेम चीज मैं उस समय भी रिपीट करूंगा, उस समय हम रेफर करेंगे इस चीज को। फ्रेंड जो आप 194 आईए की बात करें वी डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स, डोंट वरी फॉर दैट, आने वाला है आपका, काफी लोग उसको वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। सेक्शन 194B and 194B फ्रेंड्स मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज देयर इज नो सच अमेंडमेंट इन दिस 2 सेक्शन। दिस सेक्शन बिलोंग टू लॉटरी एंड हॉर्स रेस बेसिकली, कि जो भी आपकी उसमें इनकम होगी उससे आपको फ्लैट 30% आपका टीडीएस कटेगा। और इसमें बेसिक लिमिट आपकी 10,000 रुपए की है और साथ में आपको चाहे वो पेमेंट काइंड में मिले या कैश में मिले पहले टीडीएस कट के उसके बाद पेमेंट की जाएगी, ओके। दिस इज द बेसिक प्रोविजन इन सेक्शन 194B एंड डबल बी। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे सुनील सर ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि किसी प्रोफेशनल को पेमेंट मिल रही है बाय इंडिविजुअल, कि कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करता है अगर तो क्या उसकी टीडीएस काटने की लायबिलिटी है। तो फ्रेंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत मेजर अमाउंट की पेमेंट होती थी बिकॉज इट इज इन द पर्सनल पर्पस होने की वजह से उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता था, या फिर जो वो इंडिविजुअल है वो उस सेक्शन की कंडीशन को पूरा नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इन सारे सेक्शनों में लिखा है कि आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तभी टीडीएस काटना है। अब कोई सैलरी क्लास पर्सन है उसकी तो कोई टर्नओवर ही नहीं है, अब उस केस में उसको कोई भी टीडीएस नहीं काटना होता। तो फ्रेंड इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 194M को इंट्रोड्यूस करा, जो हम आगे आने वाले स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें 194C, 194H और 194J इन 3 सेक्शन को रेफर किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका इन 3 सेक्शन में टीडीएस नहीं कटा है अगर और पेमेंट आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको उस केस के अंदर 194M में टीडीएस काटना है। तो वहां पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि चाहे आपकी पेमेंट पर्सनल नेचर की क्यों ना हो तब भी आपको टीडीएस काटना है, क्योंकि इन सारे सेक्शन के अंदर जो पर्सनल नेचर की पेमेंट होती है उन सबको एक्सक्लूड किया हुआ है आपके, ओके। तो अभी हम आगे वाले साइड में 194M पे फोकस करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन 194I। तो फ्रेंड 1 अप्रैल 2019 से 194I में एक मेजर चेंज आया, जो हमारी लिमिट 1,80,000 की थी वो लिमिट हमारी बढ़ गई होगी 2,40,000 की। कि अगर हम किसी को रेंट पे करते हैं और वो अगर 2,40,000 से कम है अगर तो उस केस में हमें कोई भी टीडीएस नहीं काटना। बाकी हमारी प्रोविजन सेम है उसके कि ऐसे हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी तभी हमारे पास एप्लीकेबल होगा। ये फ्रेंड्स कब होता है इंडिविजुअल और
HUF के केस में, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, LLP और कंपनी, उनके बाद तो डे 1 से ही टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है आपकी। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बहुत बार फ्रेंड्स क्या होता है कि सपोज जो लैंडलॉर्ड होता है वो जॉइंट होते हैं, तो मिस्टर ए एंड मिसिस ए, दे आर द जॉइंट लैंडलॉर्ड। अब इस केस में सपोज मैं अगर 3 लाख रुपए का रेंट पे कर रहा हूँ ईयरली, तो 1.5 लाख रुपए का मिस्टर ए को पे कर रहा हूँ और 1.5 लाख रुपए का मिसिस ए को पे कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या मेरी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है? ये कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो लेट्स से फ्रेंड्स कि आप लोगों का क्या व्यू है इस केस के अंदर कि अगर मैं 3 लाख रुपए का रेंट पे कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए ईच रेंट पे कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उस केस में टीडीएस काटना है या टीडीएस नहीं काटना? कुछ पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं नो। अमित अग्रवाल जी का आंसर आया नो। यस अमित जी, यू आर करेक्टली सेड देयर इज नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस। अब इस केस में क्या है, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको 2,40,000 रुपए की लिमिट दी गई है यहाँ पे, कंबाइंड लिमिट नहीं है यहाँ पे, या असेसी वाइज लिमिट है आपकी। तो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना, जिस केस में आपकी जॉइंट लैंडलॉर्ड है और उसमें 2,40,000 ईच की पेमेंट नहीं हो रही है आपकी। अगर फ्रेंड्स कुछ हमारे 194 आई में बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस लॉ की रेफरेंस से बनाया गया है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेदर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई शैल अप्लाई इन केस वेयर पेमेंट फॉर होटल इज मेड बाय इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन पेमेंट करता है किसी होटल के बिल की, तो उस केस में 194 आई एप्लीकेबल होगा। उस केस में 194 आई एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो इंडिविजुअल सिर्फ इनवॉइस लेता है कंपनी के नाम पे और कंपनी डायरेक्टली उसकी पेमेंट करती है, उस केस में 194 आई एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर वो इंडिविजुअल पे कर रहा है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा आपका। बट इसको हम आगे समझेंगे रिम्बर्समेंट से भी। आगे क्वेश्चन और आएगा हमारे पास रिम्बर्समेंट का, कि रिम्बर्समेंट के केस में हम कम टीडीएस काटते हैं। वी डिस्कस विद दिस दैट टाइम। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अपफ्रंट चार्जेस। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं तो समटाइम हमें कोई अपफ्रंट चार्जेस पे करने होते हैं। ओके, और वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, रिफंडेबल नहीं होते आपके चार्जेस। तो क्या वो हमारा 194 आई में उसमें टीडीएस की लायबिलिटी आएगी? अगर वो अमाउंट हम अपने लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं बाय वट एवर नेम कोड, ठीक है, हम उसे कुछ भी नाम दें अगर, और वो कहीं ना कहीं क्या है, लैंडलॉर्ड को उस पर पेमेंट हो रही है, ओके, और वो रिफंडेबल नहीं है, तो उसकी टीडीएस की लायबिलिटी 194 आई में ही आएगी। समटाइम फ्रेंड ऐसा देखा गया है, जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है हम उसको रेंट पे करते हैं, साथ में उसको कमीशन भी पे करते हैं, कि हमने जी 1% कमीशन पे करी, हमने उसको वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, प्रीमिसेस एक्वायर करने के लिए लैंडलॉर्ड की कमीशन पे करी और उसी से हमने प्रॉपर्टी ली। तो उस केस में जो हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं कमीशन की, तो उस पर 194 आई में ही टीडीएस कटेगा आपका। अगर वो कमीशन आप किसी और पर्सन को पे कर रहे हो अदर देन लैंडलॉर्ड, तब आपका 194 एच में टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। अगर लैंडलॉर्ड को ही पे करोगे तो 194 आई में ही उसकी लायबिलिटी आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट फील लाइज है कि कहीं ना कहीं वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो सकती है। और फ्रेंड्स समटाइम इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका, कि अगर हम कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, अगर हमने अपने लैंडलॉर्ड को कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा रिफंडेबल है एट द टाइम ऑफ व्हेन वी वैकेंट द प्रीमाइसेस, तो फ्रेंड्स जिस समय हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया उस समय तो उसमें कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी क्या होगा, वो एडजस्ट होगा आपका, जब भी वो एडजस्ट होगा आपके रेंट से, ओके, उस समय उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज उस समय वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट का कलर ले लेगा, और जब वो रेंट का कलर ले लेगा तो वो उस पर आपको 194 आई में टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 194 आई ए। कुछ लोगों की क्वेरी भी आई थी बेसिकली। अभी हम 194 आई पढ़ेंगे तो उस पर हम नॉन नेजिंग पे भी बात करेंगे कि नॉन नेजिंग पे कैसे काटेंगे। फ्रेंड, जैसे 194 आई अपने आप में एक पुराना सेक्शन है, बट अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, बिकॉज 194 आई के अंदर जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उस केस में बायर को टीडीएस काटना होता है सेलर का। उसमें 2 मेन कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन है वो आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, ओके, और जो आपका सेलर है ही शुड बी रेजिडेंट। अगर सेलर रेजिडेंट होगा और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, उस केस में आपको 1% टीडीएस काटना है आपका।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका एक सेपरेट फॉर्म भी दे रखा है। ओके, फॉर्म है आपका 26 QB, वो हमको 30 डेज में फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट और पेमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस पे हम पेमेंट कर देते हैं या एग्रीमेंट होता है उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर हमें वो फॉर्म फाइल करना होता है। ये आपका चालान कम टीडीएस रिटर्न होती है। इसके बाद एक फॉर्म 16B होता है, बेसिकली वो हमें टेसिस की साइट से निकाल के सेलर को देना होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो सेलर है वो जॉइंट है आपका, और सपोज प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 60 लाख रुपीज की है, तो इंडिविजुअल सेलर को 50 लाख रुपए से कम की पेमेंट हुई है, तो क्या उस केस में हमें टीडीएस काटना है? तो फ्रेंड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, तो लेट्स कि आप लोग के क्या रिप्लाई है, काइंडली चैट बॉक्स में अपने रिप्लाई दीजिए। सर कुछ लोगों का आंसर आ रहा है यस होना चाहिए, करेक्ट। अभय जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली जो सेक्शन 194 IA में कंडीशन है वो 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी की कंडीशन है, बेसिकली वहाँ 50 लाख रुपए पर रेजिडेंट की कंडीशन नहीं है। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। अगर हम सेक्शन 194 IA में सेक्शन 2 को पढ़ेंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ एन इमरेल प्रॉपर्टी। अगर इमरेल प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से कम होगी तब आपको टीडीएस नहीं काटना। अगर इमरेल प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, चाहे उसके जॉइंट ओनर कितने भी हैं, आपको हर केस में टीडीएस काटना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके 2 बायर हैं और 2 सेलर हैं, तो उस केस में अल्टीमेटली आपके 4 26 QE फाइल होंगे। उस केस में आपके 4 26 QE फाइल होंगे आपके। ओके, अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपका था जैसे काफी लोगों का क्वेश्चन था इसके अंदर कि सर अगर जो सेलर है वो नॉन रेजिडेंट है, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में हमें 194 IA में टीडीएस काटना है नहीं काटना है? तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो 194 IA एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट। ये नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। और नॉन रेजिडेंट के लिए कॉमन सेक्शन है सेक्शन 195। ओके, और उनके लिए टीडीएस रिटर्न का फॉर्म है 27Q। हरदीप जी करेक्टली सेड फॉर्म नंबर 27Q उसके केस में एप्लीकेबल होता है। और इस केस में जो बायर है उसको 10 नंबर लेना पड़ता है। ओके, 10 नंबर लेके वो नॉर्मल आप अपना टीडीएस जमा कराएगा। ओके, अब टीडीएस का रेट क्या होगा? सेक्शन 195 में लिखा हुआ जो एप्लीकेबल रेट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस है, और अगर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है आपकी तो जो आपका स्लैब रेट है उस नॉन रेजिडेंट का, उसके हिसाब से आपको उस पर टीडीएस काट के जमा कराना है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और आती है नॉन रेजिडेंट केस में, सेक्शन 195 रीड विद सेक्शन 197। सेक्शन 197 डील विद लोड डिडक्शन सर्टिफिकेट। जनरली क्या होता है कि नॉन रेजिडेंट के केस में, लॉन्ग टर्म के केस में 20% का टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होता है, और जो कोई ना कहीं बहुत हायर रेट है, एक्चुअल में उसको इतना कैपिटल नहीं हो रहा था कि जितना उसका टैक्स जमा हो जाए, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी बने। तो उस केस में क्या होगा, वो जो नॉन रेजिडेंट है वो अपने असेसिंग ऑफिसर से अप्लाई कर सकता है लोड रिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए, LDC बोलते हैं उसको शॉर्ट में, और उसमें उसको एक कॉमन रेट अप्लाई मिल जाता है। जनरली 3% से कम का रेट अप्लाई नहीं मिलता, 3% या उससे हायर का रेट जो भी आपके एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बन रही है उतने का रेट आपको मिल जाता है, और उतना आपका फिर बायर टीडीएस काट के जमा करा देता है, और फिर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। और फ्रेंड इट इज क्लियर 194 IA। कुछ लोगों के डाउट थे स्टार्टिंग में, सेशन स्टार्ट करते ही लोगों ने डाउट पूछे थे इसके रिगार्डिंग, तो आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म। यस, अगर अभय जी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 90 लाख रुपए की है और 3 बायर और 3 सेलर है ना, उसके केस में भी सेक्शन 194A एप्लीकेबल हो जाएगा। उस केस में आपको 6 26 QE फाइल करने पड़ेंगे। Moving ahead, friends, section 194 IB, which is already applicable from 1st April 2017, rent by certain individual and HUF। जैसे कि हम सबको पता है कि सेक्शन 194 I is already there कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और कोई रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 194 I already we have। बट समटाइम क्या है कि इंडिविजुअल्स, देयर आर वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दोज हु आर पेइंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेंट एंड क्लेमिंग द HRA एज वेल। तो उस केस पे क्या है कि उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती, उनकी इनकम की ट्रैकिंग नहीं हो पाती, जो उसको रिसीव कर रहे हैं और जो पेमेंट कर रहे हैं उनकी आपस में ट्रैकिंग नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 194 IB को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे कि हमारा 194 IA सेक्शन था उसी की रेप्लिका में इसको बनाया गया, और यहाँ पे भी आपका कॉमन फॉर्म होता है 26 QC। 26 QC आपका चालान कम रिटर्न फॉर्म है,
इसके अंदर आपको कोई अलग से रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती, ये ऑनलाइन फॉर्म भरते भरते ही आपकी पेमेंट हो जाती है और रिटर्न फाइल हो जाती है आपकी। ओके, इसमें जो मेन कंडीशन है, द पर्सन हु आर पेइंग द रेंट शुड बी इंडिविजुअल और HUF एंड पेमेंट शुड बी 50,000 रुपीज पर मंथ फॉर पार्ट ऑफ द मंथ। कि आपको जो पर मंथ का रेंट है 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका पर मंथ का रेंट 50,000 से कम होगा तो उस केस में सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस केस में आपको 5% का TDS काटना है। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इस हिसाब से आपको काटना है। फ्रेंड जनरली क्या होता है, जो इंडिविजुअल और HUF होते हैं वो भी बुक्स मेंटेन नहीं करते। ओके, तो उसके केस पे कोई क्रेडिट तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो उस केस में जो भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते हुए उनका 5% का TDS काट लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स, सपोज एक 12 महीने के ईयर के अंदर, एक साल के अंदर पार्ट ऑफ द ईयर 50,000 से कम रेंट था और पार्ट ऑफ द ईयर 50,000 से ज्यादा का रेंट था, तो जिन मंथ के अंदर 50,000 से ज्यादा का रेंट था उन्हीं मंथ में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और रिस्पेक्टिवली हमें TDS काटना है। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्म 26 QC हमें फाइल करना होता है, जिसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल अगर हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर है, और उसमें फॉर्म 16C हमें जनरेट करना होता है TDS सर्टिफिकेट TCS की साइट से, जैसे कि फॉर्म 16B होता है आपका इन केस ऑफ 194 IA या फॉर्म 16C है आपका। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात तो ध्यान रखने वाली है, अगर आपका एग्रीमेंट इन बिटवीन ईयर आपका टर्मिनेट होता है आपको, तो जब वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ उसके 30 डेज में आपको फॉर्म सेक्शन 194 IB के अंदर TDS काटना होता है। सपोज आपका जुलाई वाले मंथ में आपका रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया और कोई रिन्यू नहीं हुआ आपको, तो उस केस में जुलाई का हो गया आपका अगस्त, तो आपको 30 अगस्त तक आपको TDS जमा कराना है और रिटर्न फाइल करनी है आपको। ये धर्मेंद्र जी, हमें कोई अलग से रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमने 26 QB या 26 QC फॉर्म फाइल करा है वो चालान का रिटर्न फॉर्म है, ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल हो जाती है उसमें, तो उसमें अलग से फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जब हमें 27Q फाइल करना होता है, उस केस में हमें TDS जमा करा के TDS 27Q फाइल करनी होती है और उसका फिर हमें फॉर्म TDS सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। फ्रेंड मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194J। ये फ्रेंड अपने आप में बहुत ही कॉमन सेक्शन है और हम प्रोफेशनल का सबसे TDS इसी सेक्शन में कटता है। और आप देखिए सेक्शन 194C एंड 194J ये दो ऐसे सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम केसेस के अंदर जिसमें TDS कटता है। तो इस चीज को समझने के लिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, बिकॉज रिसेंटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। 194J के अंदर जनरली 4 तरह की सर्विसेज आती हैं, आपकी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस एंड नॉन कॉम्पिटेंस फीस। तो फ्रेंड 5 तरह की सर्विसेज है जिनपे 194J में आपका 10% का TDS करता है। ओके, सबसे पहले अमेंडमेंट हुई आपकी 1 अप्रैल 2017 को। इस अमेंडमेंट के अंदर दोज हु आर डूइंग द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, कि जो लोग कॉल सेंटर का बिजनेस करते हैं उनका 2% का TDS एप्लीकेबल हो गया। जो भी कॉल सेंटर के बिजनेस है उनका 2% का TDS एप्लीकेबल हो गया। बट 1 अप्रैल 2020 से 2 और अमेंडमेंट आई इसके अंदर। फर्स्ट, जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो पहले 10% की कैटेगरी में थी उसको 2% की कैटेगरी में बाइफिकेट कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 से। साथ में जो रॉयल्टी की पेमेंट है इन रिलेशन टू कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनोग्राफी फिल्म्स, जो रॉयल्टी सिनोग्राफी फिल्म्स के रिगार्डिंग है उसकी पेमेंट पे भी 2% का TDS बाइफिकेट किया गया 1 अप्रैल 2020 से। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो कॉमनली बहुत टाइम यूज होती है कि अगर हम कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको 10% TDS ना काट के 2% का TDS काटना है। बट आपको ध्यान रखना है कि वो जो सर्विसेज पेमेंट कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी प्रोफेशनल इन नेचर, जो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल सर्विसेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझना जरूरी हो गया कि सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है और टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है। ओके, अब फ्रेंड जब हम सेक्शन 194J की बात करते हैं और प्रोफेशनल सर्विस की बात करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस को बिना सेक्शन 44A के नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सेक्शन 44AA में डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन सी प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी, लाइक लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब सर्विसेज कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कैटेगरी में डिवाइड की गई है आपकी। और ये सब सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विस की कैटेगरी में आती है और कहीं ना कहीं 10% का TDS एप्लीकेबल होता है। और कहने की टेक्निकल सर्विसेज को समझने के लिए सेक्शन 917 एक्सप्लेनेशन 2 वहां पे फीस टेक्निकल सर्विस को डिफाइन किया गया है और उसके अंदर कौन कौन सर्विस इंक्लूड होती है, मैनेजर सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोविजन फॉर सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और कंसल्टेंसी पर्सनल। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पर्सनल सर्विसेज
प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज, इनके बीच में कहीं ना कहीं थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बट यही हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है कि हम कैसे इसको कहाँ डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंगली टीडीएस काटते हैं। आने वाले टाइम के अंदर एक काफी ये लिटिगेशन का स्कोप है इसके अंदर कि किस सर्विस को टेक्निकल सर्विस माना जाएगा और किसको प्रोफेशनल सर्विस माना जाएगा। ऐसे कहेंगे सर इट इज टेक्निकल सर्विसेज 2% टीडीएस एप्लीकेबल, डिपार्टमेंट जाएगा इट इज प्रोफेशनल सर्विसेज एंड 10% टीडीएस एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये हमारा एक जजमेंट का पॉइंट रहेगा कि हमें प्रोफेशनली जज करना है कि किसको प्रोफेशनल मानना है और किसको टेक्निकल मानना है। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि एज पर डेफिनेशन कौन कौन सी इस पे कवर होंगी आपकी। संगम भाई, ये जो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी आप कह रहे हैं, हाँ जी, एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट या नॉन क्वालिफाइड पर्सन इफ ही गिव हिज सर्विस एज एन अकाउंटेंट, तो उसमें क्या टीडीएस की आएगी? टीडीएस कितना होगा उसमें? देखो सर यहाँ पे लिखा है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड बिल्कुल मेंशन नहीं है सर आपका। जी ठीक है सर, तो अगर उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड मेंशन नहीं किया तो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी फॉलोड बाय एनीवन, वेदर ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर ही इज कंपनी सेक्रेटरी और वेदर ही इज प्लेन ग्रेजुएट। जी ओके, जी, अगर सर ठीक वो है। वहां पे फुल टाइम अकाउंटेंट है, ओके, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो सेक्शन 192 में डिस्कस कर सकते हैं। बट वो अगर रिटर्नशिप पे काम करता है, मतलब एक दिन में 4 जगह काम करता है, ओके, तो उस केस में 194 जे में टीडीएस कटेगा। बट राजेश जी प्रैक्टिकली क्या होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं फुल टाइम अकाउंटेंट होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहाँ कहीं ना कहीं होता है, तो मेजरली उनकी जो टीडीएस कटता है वो 194 192 में कटता है उनका टीडीएस, नहीं, बिकॉज मान दे लो आर जो अकाउंटेंट। जो बट अगर वो, जो जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट होते हैं, हाँ जी, आपके हिसाब से तो वो फिर 44 एडी में ही आएंगे? 44 डबल ए में, हाँ सर 44 डबल ए में कवर हो जाएंगे सर। हाँ जी, हाँ, 44 डबल ए में, सॉरी, ठीक है। हाँ, और 194 जे में उनका 10% टीडीएस कटेगा सर उनका। ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हेन वी आर मेकिंग एनी पेमेंट टू मेडिकल प्रोफेशन, तो उस केस में 194 जे हमारा एप्लीकेबल होता है। ओके, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर, question number 2, whether TDS need to deduct on reimbursement of expense if mentioned on the bill। फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार डिबेट हो चुका है ये क्वेश्चन कि सर जो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस होते हैं आपके, उस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को अपने एग्जांपल से लेता हूँ। जनरली हमें ईयरली बैंक ऑडिट्स मिलते हैं, हम बैंक ऑडिट पे जाते हैं। व्हेनेवर वी मूव टू बैंक ऑडिट, तो हम वहाँ कोई भी एक्सपेंस करते हैं और जो हम एक्सपेंस करते हैं उस एक्सपेंस की हमें फिर रिम्बर्समेंट मिलती है। तो फ्रेंड अगर हम कोई रिम्बर्समेंट अपने एक्सपेंस के ले रहे हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड है, तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में रिम्बर्समेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अगर प्रॉफिट का एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो गया तो उस पर टीडीएस कटेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मेरा कहीं ना कहीं जो मैंने वो एक्सपेंस इंकर करा है ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल किया है, अगर मैंने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है आपका अगर, और वो आपने कोई प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड नहीं है और हम उसका सेपरेट बिल इशू करते हैं, तो उस केस में उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और फ्रेंड आई एम क्लियर? पहली बात क्या है, प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए और इसका एक सेपरेट इनवॉइस होना चाहिए आपका। अगर सेपरेट इनवॉइस होगा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जनरली फ्रेंड्स डी की चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग एमसीए में गवर्नमेंट की फीस की पेमेंट करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो सब कहीं ना कहीं हम एज एन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट पेमेंट करते हैं। ओके, और उसमें कोई हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता, तो उन सब पेमेंट्स के ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटता है। हम कोशिश करते हैं उसको एक सेपरेट इनवॉइस देने की जिससे कोई लिटिगेशन भी ना हो उसके अंदर। इवन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन कि अगर हम 2,40,000 के ऊपर टू कोनर्स को देते हैं अगर हम, तो कोनर के केस में वो आपकी 2,40,000 ईच की लिमिट काउंट होगी। राजेश जैन जी, कैन रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स इंक्लूड इन अवर इनकम? फ्रेंड इट कैन नेवर बी इंक्लूड इन अवर इनकम, बिकॉज जो रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स है वो कहीं ना कहीं मैंने एज एन मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है और उसमें मेरा कोई प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो वो कभी भी मेरी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। Moving to next question, whether payment made to hotel for room hire during the year would be the nature of rent? Friends, बहुत बार क्या होता है, हम बैंक पे जाते हैं तो हमें होटल हायर करना पड़ता है, रूम हायर करना पड़ता है, तो क्या उस केस में 194 सी में काटे हैं टीडीएस या 194 आई में उसका टीडीएस कटेगा? सपोज आई एम
अगर मैं बैंक ऑडिट का एग्जांपल ना लूं बिल्कुल उस केस में तो आपका रिम्बर्समेंट वाला केस आ जाएगा। बट अगर मैं डायरेक्टली सपोज आई एम ए कंपनी और मेरा एम्प्लॉई एज ए डायरेक्टर मैं किसी होटल में गया हूँ और उसकी डायरेक्टली कंपनी के नाम से पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में जो होटल के रूम की पेमेंट है तो क्या 194 में डिस्काउंट होगा या 194 में डिस्काउंट होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे ना ये दिस मैटर हैज ऑलरेडी डिस्कस एंड वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट कि जो हमने होटल का रेंट रूम लिया है उसका हमारा मेन पर्पस है उस रूम को एक्वायर करने का, और कहीं ना कहीं मैं उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए आई कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट ऑफ सच रूम, देयरफॉर सेक्शन 194 आई विल बी एप्लीकेबल। तो कहीं ना कहीं एक जो एग्रीमेंट है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस रूम को यूज करने का है। ओके, अब जनरली क्या होता है हमको प्रीमाइस रेंट लेते हैं वो मंथली नेचर पे होता है, कुछ आपका डे वाइज पे हो सकता है, तो जनरली होटल जो होते हैं पर नाइट बेसिस पे होते हैं, तो पर्पस वही है बट वो पर डे के बेसिस पे, तो इसलिए कंफ्यूजन की 194 सी एप्लीकेबल हो सकता है बट लीगली इसमें 194 आई एप्लीकेबल होता है। अब फ्रेंड जैसे अगर हमने बात करी होटल रेंट की, अगर हमने कोई सेमिनार होल्ड करते हैं जैसे राजेश अग्रवाल जी पूसा रोड सर्जिकल में सेशन कराते हैं और वहाँ पे होटल बुक करते हैं, उसका नाम सुगंध ऐसा कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, करोल बाग के अंदर होटल है वो, तो अब उसकी जो पेमेंट करते हैं राजेश जी, सर क्या नाम है होटल का? होटल का नाम ही भूल गए भैया हम तो। स्वाति डीलक्स, स्वाति डीलक्स, हाँ स्वाति डीलक्स। राजेश जी स्वाति डीलक्स में प्रोग्राम करते हैं, आप जो उसको पेमेंट करते हैं स्टडी सर्कल से, तो अब उसके ऊपर जो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी वो 194 सी में आएगी या 194 आई में आएगी। तो यहाँ पे देखा जाएगा हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा उस प्रोमाइसिस को लेना पर्पस है या हम पर प्लेट बेसिस पे हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है मेनली। तो अगर हमारा पर्पस उस प्रोमाइसिस को लेना है सिर्फ, ओके, तो 194 आई एप्लीकेबल है। बट लेकिन जहां हम पेमेंट कर रहे हैं, ओके, जहां पेमेंट कर रहे हैं प्लेट बेसिस पे, ओके, पर्सन काउंट हो रहे हैं आपके बेसिकली, तो उसमें दोनों चीज इंक्लूड है, आपकी कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट भी इंक्लूड है, डिनर वाला पार्ट भी इंक्लूड है आपका, तो वहां कहीं ना कहीं सेक्शन 194 सी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों सर्विसेज उसमें इंक्लूड है। ओके, सिर्फ यूजर प्रीमाइसेस नहीं है। बट जब होटल का रूम यूज करते हैं हम लोग तो वहां पे कहीं ना कहीं मेन पर्पस, मेन रेंटल पार्ट जो होता है वो होटल के रूम रेंट का होता है। फ्रेंड्स ऑल्दो ये सब चीजें क्या है, ये कंट्रोवर्सी वाली चीजें हैं जो आप डिस्कस कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ केस लो आने की वजह से इनको कहीं ना कहीं दे रेस्ट एंड दिस इज द फॉर्म डिसीजंस नाउ। whether contract for putting up hoarding would be covered under section 194I or 194C of the act। जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे बार वी नीड टू मेक पेमेंट फॉर द होर्डिंग्स, आपने देखा रोड में बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होती है, व्हेन वी मेक द पेमेंट फॉर द होर्डिंग्स, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, उस होर्डिंग को किराए पे लेना होता है या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो मेन पर्पस हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट होती है। ओके, और 194C में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट के लिए हम पेमेंट करते हैं, इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, तो उसमें सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। तो कभी भी उस होर्डिंग को लेने का पर्पस, उस होर्डिंग को किराए पे लेना, मेरा पर्पस ये नहीं था कि होर्डिंग मैंने किराए पे ले ली, सिर्फ एरिया मैंने किराए पे ले लिया, एडवर्टीजमेंट मेरा मेन पर्पस होता है, तो उसका सेक्शन 194C में डिटेल्स कर देगा उस हिसाब से देखा जाए। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन 194H। एंड ये 194H मैंने इसलिए मेंशन किया था बिकॉज़ मुझे 194M में हेल्प चाहिए थी, इसलिए ऑल्दो 194H में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट बिना 194H पढ़े 194M समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने मेंशन किया था। तो 194H के अंदर हमारा 5% का टीडीएस का रेट है और जो 15,000 से ऊपर की पेमेंट होगी सिर्फ उसी पे हमारा 194H एप्लीकेबल होगा। ओके, और इसमें स्पेशल चीज क्या है, आपका कमीशन और ब्रोकेज, हम कोई भी पेमेंट करते हैं कमीशन और ब्रोकेज की फॉर्म में, आपका 194H उसमें एप्लीकेबल होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कमीशन और ब्रोकेज एज सेक्शन 194H। अब एक कॉमन क्वेश्चन फ्रेंड हम काफी हमारे सामने आया है कि जब हम बैंक को पेमेंट करते हैं बैंक गारंटी की, उस समय बैंक को हम कुछ कमीशन पे करते हैं, तो क्या उस कमीशन पे हमें टीडीएस काटना है 194H के अंदर? फ्रेंड्स कुछ आपसे रिप्लाई चाहूंगा तो हम सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जो हम बैंक को जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वो तो क्या है आपका एग्जाम्प्ट है, उस पर तो कोई टीडीएस नहीं कटता। ओके, बिकॉज सेक्शन 194A में क्लियरली मेंशन है। बट जो भी हम बैंक गारंटी या कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो कमीशन पेमेंट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्योर कमीशन। ओके, अगर ये प्योर कमीशन नहीं है आपका, तो इसलिए फिर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी भी नहीं आएगी 194H के अंदर। तो इसलिए जब बैंक को हम कमीशन पे करते हैं बैंक गारंटी के ऊपर, उस पर कोई हमें टीडीएस नहीं काटना होता।
Another question is whether payment of commission by mother dairy to confectionaries is liable to TDS under section 194H. अब क्या है, मदर डेयरी की बहुत सारी कन्फेक्शनरीज होती हैं, उनको कमीशन पे करते हैं कि आपने अगर 20 लीटर दूध सेल किया इतना होगा, या आइटम सेल के हिसाब से इतना होगा आपका। तो उस केस में क्या हमको TDS काटना है 194H के अंदर, क्या वो एक्चुअल में कमीशन है? फ्रेंड दिस इज आल्सो डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कि इस केस में क्या है, आपका प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो 194H एप्लीकेबल नहीं होगा, 194C एप्लीकेबल होगा यहाँ पे आपका। तो जो आपका पर्पस है पेमेंट करने का, वो आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आके आप उसको पेमेंट करते हैं। ओके, दिस इज आल्सो डिसाइडेड इन द केस ऑफ मदर डेयरी, सो आई मेंशन दिस। यस वरुण जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी कमीशन पे करते हैं रोजर पे को फॉर सेटलमेंट, अगर हमने कोई सेटलमेंट करी उसके अगेंस्ट भी कमीशन पे कर रहे हैं, तो अगर आपका 194H का पैरामीटर पूरा होता है, लाइक अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा की है, तो उस केस में उस कमीशन पे आपको TDS काटने की लायबिलिटी है। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। अगर मैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता हूँ कमीशन की, जैसे आपने देखा होगा जनरली वो लोग 20 to 30% कमीशन चार्ज करते हैं, ओके, अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, तो उन केस में हमको TDS काटना होता है। पर जनरली क्या होता है, जो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट होते हैं वो 194H की बेसिक कंडीशन है 1 करोड़ रुपए वाली, अगर उसको पूरा करते हैं तब उनको फिर TDS काटने की लायबिलिटी आएगी उस वाले कमीशन के ऊपर। सुनील जी, वो आपको सेक्शन 194M, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 194M सर। व्हाट सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे गुरुजी, सुन रहे हैं। हाँ, सेक्शन 194M, ओके। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 194M आने से पहले बहुत सारी पर्सनल पेमेंट्स होती थी जो पर्सनल नेचर की होती थी, जिसकी वजह से सेक्शन 194J, 194H और 194C ये 3 मेन सेक्शन है जिन पे TDS नहीं कट पाता था। तो तीनों में लिखा हुआ है जो पर्सनल पेमेंट होगी उस पर TDS नहीं कटेगा। मतलब मैंने कोई अगर पेमेंट करी सुनील जी को पर्सनल नेचर की, तो मुझे कोई TDS नहीं काटना, बिकॉज सपोज सुनील जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम इंडिविजुअल पर्सन, तो मुझे कोई TDS नहीं काटना उनका। तो इसमें क्या होता था, बहुत मेजर पेमेंट्स होती थी बट वो कहीं ट्रैक नहीं हो पाती थी। तो 1 सितंबर 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा, जो कि अभी फ्रेंड बहुत सारे प्रोफेशनल की नॉलेज में नहीं है और अभी भी TDS नहीं कट रहा उसके ऊपर। ओके, तो अब इस केस में क्या है कि अगर आपको 194C, H और J में TDS नहीं कटा हुआ और आप किसी तरह का काम लेते हैं, यू आर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क एज पर सेक्शन 194C by way of commission, by section or brokerage as section 194H और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एज सेक्शन 194J। मतलब प्योरली उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि जो पेमेंट उस सेक्शन में लिखी हुई है वो आपने पेमेंट करी है अगर, और वो उसका पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको 5% का TDS काटना है। उस केस में आपको 5% का TDS काटना है। इसके लिए एक डिफरेंट सेक्शन है आपका फ्रेंड 194IC स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए। ओके, तो अगर आपने पर्सनल पेमेंट करी तब भी आपको TDS काटना है 194M के अंदर। सुनिए, क्लियर है पॉइंट सर, आपको डिस्कस करना है इसके अंदर? नहीं, आई थिंक फेयर इनफ। थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लाख। 50 लाख, करेक्ट। 50 लाख। अगर ये पेमेंट 50 लाख से ज्यादा होती है तो पूरे अमाउंट पे काटना है 5%। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। When there is no much change in insurance commission, so moving to next section, section 194DA. There is a very good change and a very welcome change which was demanding from long time from income tax department. So इस केस में क्या है फ्रेंड्स, जैसे 194DA is a old section. In this case, insurance company need to deduct TDS. So whenever insurance company make any payment of insurance policy which is not exempt in section 1010D, अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1010D में एग्जेप्ट नहीं है उसकी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को 5% TDS काटना था। ओके, बेसिक लिमिट थी इस पे 1 लाख रुपए की, अगर पेमेंट 1 लाख रुपए से ऊपर होगी उसी केस में उनको TDS काटना है। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या था, जो कंडीशन थी 194DA की थी वो थी एनी सम, जो सम है बेसिकली, और सम हुआ आपका पॉलिसी का जो सम है। अब पॉलिसी का सम क्या होता है, कंप्लीट अमाउंट दैट इंक्लूड जो मैंने प्रीमियम पे करा है वो, और जो मुझे एडिशनल इनकम हो रही है बोनस की फॉर्म में या एडिशनल मुझे कोई पैसा मिल रहा है, तो पूरे अमाउंट पे मिलके 5% का TDS करता था, जो फ्रेंड कहीं ना कहीं रैशनल नहीं था। तो बहुत सारे प्रोफेशनल ने, ICA ने भी, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करा इसके लिए कि सर ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रैशनल नहीं है। रैशनल क्यों नहीं है? क्योंकि टीडीएस जो कट रहा है पूरी इनकम पे, मतलब पूरी रिसिप्ट पे कट रहा है, ना कि इनकम पे कटने की वजह से। तो 1 अप्रैल 2019 को इसमें अमेंडमेंट की, 1 सितंबर 2019 को इसमें अमेंडमेंट की गई, और इस अमेंडमेंट के अंदर जो इनकम वाला पार्ट है आपका, सिर्फ इनकम वाले पार्ट पे आपको 5% का टीडीएस काटना है। तो फ्रेंड्स कीप इन माइंड, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, कि जो वो कमीशन, जो वो लोग जो इंश्योरेंस के पेमेंट कर रहे हैं, जो 1010D में एग्जाम नहीं है, उसमें से इनकम वाले पार्ट पे 5% का टीडीएस काटना है। और फ्रेंड आपका क्वेश्चन होगा सर 1010D में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो जिसपे टैक्स, जो टैक्सेबल, जिसपे जो एग्जाम है आपकी। सबसे पहले की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, ओके। उसके अलावा वो सारी पॉलिसी जिनका प्रीमियम 10% से ज्यादा होता है सम इंश्योर्ड का, ओके, वो सब पॉलिसी 1010D में एग्जाम नहीं होती है, उसकी इनकम कहीं ना कहीं हमारे पास टैक्सेबल होती है हमारी अदर सोर्स के अंदर। और साथ में फ्रेंड जो 10% की लिमिट है वो 15% हो जाती है इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन, ओके। कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 10-15% की लिमिट अलाउड है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस केस में हमको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज ए गुड सेक्शन। सपोज मिस्टर शर्मा took insurance policy on July 26 for 2,20,000 rupees and he paid premium of 55,000 rupees. And every year on July 25, 2020, he received 2,50,000 rupees as a maturity proceeding. Whether TDS under section 194DA is applicable, and let's understand whether this policy is taxable or not. First, premium paid is 55,000 rupees and policy sum insured is 2,20,000. So friend, here it is more than 10%, therefore income part is taxable, okay. And now calculate income. 2,50,000 rupees the maturity amount, and then 2,20,000 was the amount paid by the insured. So here 30,000 rupees is the income part, therefore 5% TDS is applicable on the income part. So it is the answer. Premium was 55,000 rupees, it is more than 10% of sum insured, hence taxable under section 1010D. Proceed receive is greater than 1 lakh rupees, section is applicable, and TDS is 5% of 30,000, only income part, not on complete sum. अभी जी 10% डूइंग द ईयर देखना है। यस, जो आपने प्रीमियम पे करा डूइंग द ईयर, आपने 10% से ज्यादा का प्रीमियम पे करा हो उस वाली पॉलिसी के लिए। Okay friends, moving to next section, section 194N, one of the very important section, this section is introduced just to curb the black money. As you know friends, there is a circulation of cash in the market. Just to stop that, Income Tax Department introduced this section, and this section is applicable from 1st September 2019, and this is applicable mainly on 3 companies: banking company, cooperative society, and post office. So 3 kind of company or assessees on this section is applicable. This section is only applicable when there is a cash withdrawal which is more than 1 crore. अगर हम एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन आपका अप्लीकेबल हो जाता है। फ्रॉम 1 अकाउंट और मोर अकाउंट मेंटेन बाय द रिसिपिएंट। अगर जो रिसिपिएंट है, अगर वो एक या एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन करता है, अगर उन सबको मिला के आपका 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हो, तो उस केस में आपका ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है। तो फ्रेंड जनरली सेक्शन ना सब पे लगता है। सबका कहने का मतलब है whether you are individual, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, कि कोई भी विड्रॉ करेगा उस पे टीडीएस का प्रोविजन लग जाएगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, बेस्ड अपॉन योर फाइलिंग स्टेटस, बेस्ड अपॉन योर ITR फाइलिंग स्टेटस, आपका टीडीएस का रेट डिसाइड होगा। जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में 206AB, उसके पहले ही कहीं ना कहीं ITR फाइलिंग को कंप्लाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 194N के अंदर टीडीएस फाइलिंग की रिक्वायरमेंट को ऐड कर दिया। तो फ्रेंड जो लोग ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, तो डिपार्टमेंट चाहता है कि अगर वो ITR फाइल कर रहे हैं, ओके, तो उन पे लोअर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई हो। अगर वो ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो उन पे हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई हो। ओके, अब कैसे होगा अप्लाई? तो फ्रेंड पहले ये क्या है, कुछ इसके एक्सक्लूजन है कि ये सेक्शन किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट, जो ऑब्वियस है, जल्दी हर सेक्शन में गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक बैंकिंग कंपनी दूसरी बैंकिंग कंपनी का टीडीएस नहीं काटेगी, ओके। कोई एटीएम ऑपरेटर होगा, जिन्हें उनको कैश विड्रॉ करना पड़ता है, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। और एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ओके। अब मूविंग टू सेक्शन 194N, कि इसमें कंप्लाइंट क्या है और नॉन कंप्लाइंट क्या है।
तो फ्रेंड अगर आप कंप्लाइंट है तो आप पे डिफरेंट रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल है, और अगर आप नॉन कंप्लाइंट है तो आप पे डिफरेंट रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल है। कैसे? अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है आपने अंडर सेक्शन 139(1), ओके, अगर आपने 3 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी 1 करोड़ की, कि अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का कोई अमाउंट विड्रॉ करा तो उस केस में 2% का टीडीएस एप्लीकेबल है मोर देन 1 करोड़ के अमाउंट पे। आपने सपोज 1 करोड़ 5 लाख रुपए का अमाउंट विड्रॉ करा उस केस में, और आपने 3 साल की आईटीआर फिल कर रखी है, उस केस में सिर्फ 5 लाख रुपए वाले अमाउंट पे 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ओके। और अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं कर रखी उस केस में वो 1 करोड़ की लिमिट आपके लिए बन जाएगी 20 लाख की लिमिट। कैसे? अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर नहीं भर रखी तो 20 लाख तक तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, आपका 20 लाख से 1 करोड़ तक कटेगा 2%, और 1 करोड़ से ऊपर कटेगा आपका 5% का टीडीएस। तो फ्रेंड 5% इज वेरी हायर अमाउंट, ओके। तो जनरली गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए कंपेल करना, कि वो कैश कम से कम विड्रॉ करे और आईटीआर ज्यादा से ज्यादा लोग फाइल करे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सेक्शन 139(1) को रेफर कर रखा है यहाँ पे। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सेक्शन 139(1), इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। जैसे अभी वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ जून, तो फाइनेंशियल 2021 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर वाज 30 सितंबर, ओके। 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट है फाइनेंशियल 2021 की आईटीआर भरने की। अभी क्या है फ्रेंड, अगर आज की डेट में हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो बैंक हमारा इस केस में ये चेक करेगा जो लास्ट के 3 साल है उसमें 17-18, 17-18, 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर, ये 3 साल मेरे चेक होंगे कि मैंने आईटीआर भरी या नहीं भरी, ओके। और इस केस में बैंक क्या करेगा, आपसे पहले ही डिक्लेरेशन ले लेगा आपसे। जनरली बैंक क्या करते हैं, आप 90 लाख रुपए तक विड्रॉ करते हैं तो आपसे कोई डिक्लेरेशन नहीं लेता। जैसे आप 90 लाख रुपए या उसके बाद विड्रॉ करते हो तो बैंक आपसे पहले आपकी आईटीआर की कॉपी मांगती है और आपसे डिक्लेरेशन लेता है, और उसके हिसाब से फिर आपके टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी चार्ज करता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है फ्रेंड। और अब क्या है फ्रेंड, सपोज हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं अक्टूबर की, 5 अक्टूबर 2021 को अगर एसएससी ने आईटीआर नहीं भरी तो उस केस में एसएससी बन जाएगा नॉन कंप्लाइंट, और नॉन कंप्लाइंट बनने की वजह से उसको 1 करोड़ की लिमिट ना मिलकर उसको 20 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, ओके। और 20 लाख रुपए की लिमिट मिलने की वजह से अगर वो सपोज 90 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर चुका है तो 20 लाख रुपए से जो ऊपर का अमाउंट होगा उस पूरे पे 2% का टीडीएस उसका कट जाएगा जब भी वो नेक्स्ट टाइम कैश विड्रॉ करेगा आपका। तो ये एक लिमिट दी गई है आपको कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट होने की सेक्शन 194(n) में। तो ये स्टार्ट 194(n) से की गई, और अब जो 1 जुलाई 2021 से 206A भी अप्लाई होने वाला है वो कहीं ना कहीं यहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली उस सेक्शन का। और फ्रेंड इट इज क्लियर, और जो भी टीडीएस काटना है वो आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटना है। अब फ्रेंड्स तो 2-3 चीजें आती हैं इसके अंदर कि सर अगर क्या है जो मैं 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अगर 2 अलग अलग बैंकों से कर रहा हूँ, ओके, 2 बैंक मतलब सपोज मेरे 2 अकाउंट, एक आईसीआईसी में एक पीएनबी में, मैंने पीएनबी से विड्रॉ करा और मैंने आईसीआईसी से विड्रॉ करा, उस केस में क्या मेरा टीडीएस कटेगा? अगर दोनों बैंक से मैंने 1 करोड़ से कम करा लेकिन दोनों बैंकों को मिला के मैंने 1 करोड़ से ज्यादा करा, तो फ्रेंड प्रैक्टिकली क्या है कि दोनों बैंकों का आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब दोनों अपना टीडीएस की लायबिलिटी चेक करेंगे तो पीएनबी वाला आईसीसी चेक नहीं कर सकता कि उससे कितना विड्रॉ हुआ है, ओके। तो प्रैक्टिकली इस केस में आपको दोनों बैंकों की अलग अलग लिमिट देखी जाएगी टीडीएस विड्रॉ करने के लिए। अब केस नंबर 2, अगर मैं जो कैश विड्रॉ करता हूँ 2 डिफरेंट ब्रांचेस से करता हूँ, अगर मैं सपोज आईसीआईसी बैंक की 2 डिफरेंट ब्रांचेस है, दोनों में मेरा अकाउंट है, अगर मैं वहां से विड्रॉ करता हूँ तो उस केस में सीडीएस होने की वजह से, कोर बैंकिंग सिस्टम होने की वजह से बैंक बड़ी इजीली ट्रेस कर सकता है कि मैंने एक बैंक से कितना विड्रॉ करा है। तो उस केस में दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर दिया जाएगा, और मर्ज करने के बाद लायबिलिटी चेक करी जाएगी मेरी कि मेरी 1 करोड़ से ऊपर लायबिलिटी है या नहीं। Hope friends it is clear to all of you. You can write your question in the Q&A. We will take your Q&A soon. Coming to another very important section, section 194O. ये फ्रेंड ऑलरेडी इससे सेक्शन अप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से, एंड 2 मेन सेक्शन आए थे 1 अक्टूबर 2020 से, सेक्शन 194O और साथ में 206C1H। ये 2 सेक्शन आए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, जो दोनों ही बहुत मेजर सेक्शन है और जिनसे काफी मेजर लोग टीडीएस और टीसीएस के प्रीव्यू में कवर हो गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीडीएस और टीसीएस को इम्पोज करने का मेन पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं एक टाइमली कलेक्शन ऑफ पेमेंट है और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है, जिससे कि ड्यूरिंग असेसमेंट वो चीजों को चेक किया जा सके प्रॉपर्ली। तो 194O is pertain to payment to certain sum to e-commerce operator to e-commerce participant। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है। तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर इज
the one who operate, manage a digital electronic facility for the sale of goods or services. Okay, कोई भी पर्सन जो एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को रन कर रहा है, ओन कर रहा है, जिससे कि आपको ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज सेल करने की परमिशन मिल रही है या आपको एक सर्विस मिल रही है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर. Okay, so in short we can understand e-commerce operator will be Flipkart, Amazon, Alibaba. Okay, this kind of company will be e-commerce operator, and e-commerce participant will be a resident of India who sell goods or services or both through digital electronic facility provided by the e-commerce operator. अगर कोई भी जो पार्टिसिपेंट है, ओके, जो रेजिडेंट है और वो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज बेचता है, तो उस केस में वो उसको ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहा जाएगा. तो फ्रेंड, आई थिंक इट इज क्लियर. फ्लिपकार्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर और सपोज ABC कंपनी इज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. और फ्रेंड, इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंडिंग. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड या उससे पहले लास्ट 5 years के अंदर ई कॉमर्स become very active and majority of suppliers person convert to their business to the e-commerce. तो कहीं ना कहीं इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी जिससे कि उनकी पेमेंट को भी ट्रैक किया जा सके. अब मूविंग अहेड सर, सेक्शन 194 के अंदर राजीव जी, दिस सेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें क्या है देखेंगे आप कि आपका एक तो 1% का आपका टीडीएस कटेगा यहाँ का आपका, जब आपकी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ 5 लाख से ज्यादा होंगी आपकी. अगर 5 लाख से ज्यादा होती है तो पूरे अमाउंट का आपका 1% का टीडीएस कटेगा आपका, और ये पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर के हिसाब से कटेगा आपका. और इसमें कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट को तवज्जो नहीं दिया जाएगा. मतलब जैसा कि हम सबको पता है कि जब ई कॉमर्स की सेल होती है, सपोज करंट मंथ की सेल है 10 लाख रुपीज की, तो उसमें से कुछ अमाउंट नेक्स्ट मंथ वापस आता है, दैट्स कॉल्ड सेल रिटर्न. तो देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ सेल रिटर्न व्हाइल डिडक्टिंग द टीडीएस. टीडीएस नीड टू डिडक्ट ऑन ग्रॉस अमाउंट. तो सेक्शन 194 को पढ़ते हैं, वहां तो वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस अमाउंट. तो ये अपने आप में सिग्निफाई करता है कि आपका जो सेल रिटर्न है आपको उसको कंसीडर नहीं करना, कोई भी क्रेडिट नोट को कंसीडर नहीं करना, कोई भी डेबिट नोट को कंसीडर नहीं करना, और कोई भी सेल रिटर्न को कंसीडर नहीं करना व्हाइल डिडक्टिंग द टीडीएस. होप सर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसमें एक स्पेशल पॉइंट और है कि अगर आपको पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर से ना मिलती है, सीधा वेंडर से मिल रही है, अगर आपको वेंडर कौन, द पर्सन हु बाय द गुड्स, अगर डायरेक्ट उससे आपको पेमेंट मिल रही है, उस केस के अंदर भी आपकी टीडीएस की लायबिलिटी होगी. आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने आपको सेक्शन 194A जब हमने पढ़ा था तो मैंने एक एनबीएफसी का एग्जांपल लिया था आपसे कि सर इस केस में टीडीएस कैसे कटेगा फिर आपका. तो इस केस में क्या है, ऑल्दो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक आपका फ्लिपकार्ट है, एक आपका वेंडर है, सप्लायर है, और एक आपका बायर है. बायर फ्लिपकार्ट और सेलर. तो इस केस में क्या है, जो बायर है वो डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है सेलर को. इवन देन जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है आपका फ्लिपकार्ट, उसकी भी लायबिलिटी है टीडीएस काटने की यहाँ पे. और इस केस में क्या होगा, आपका जो हम पेमेंट करेंगे, जो हमारा सेलर है, ओके, वो सेलर पे जो पेमेंट आ जाएगी तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपने पास से उसका टीडीएस काट के जमा करा देगा और उससे नेक्स्ट पेमेंट में उसको एडजस्ट कर लेगा. तो दिस विल बी मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस इन सेक्शन 194. यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल बनाया था, आई थिंक एग्जांपल क्लियर हो चुका है. ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हमारा XYZ कंपनी है, और अगर हमारी पेमेंट ठीक है 5 लाख से ज्यादा है, तो इस एग्जांपल में 5,50,000 की पेमेंट है, तो पूरे अमाउंट के ऊपर हमारा 1% का टीडीएस कटेगा. आई थिंक एग्जांपल क्लियर है. बिल्कुल. अभी इस वाले पॉइंट पे आता हूँ सर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया से बाहर है उनका क्या होगा. ओके, whether the TDS is deducted or non-resident selling. अब फ्रेंड इस केस में क्या है, जो हमारे वेंडर है, जो हमारे सेलर है, वो नॉन रेजिडेंट है, तो क्या उनका 194O में टीडीएस कटेगा. फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, उस पर एक यूएस की पार्टी है जो रजिस्टर है, जो इंडिया में गुड्स बेचती है. ओके, तो फ्रेंड इस केस में क्या 194O की प्राइम कंडीशन क्या है आपकी, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है द पर्सन शुड बी रेजिडेंट. तो इस केस में हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर जो यूएस की पार्टी है वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, तो रेजिडेंट ना होने की वजह से उसका क्या होगा, उसका टीडीएस नहीं कटेगा 194O के अंदर. अब फ्रेंड्स चीजें डिफरेंट हो गई. अब रिसेंटली क्या था, हमारा इक्वेशन लेवी एप्लीकेबल हो चुका है, तो 194O एप्लीकेबल नहीं होगा. बट इस केस में क्या होगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उस पर इक्वेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा. तो अभी मैं आपको एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को भी लेता हूँ.
with this slide, मैंने एक्चुअली हुआ क्या 194 को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एंटिटी के अलावा कुछ बहुत सारे बड़े ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो इंडिया के बाहर हैं। जैसे उनमें दो मेनली हैं आपके, अलीबाबा और आपका एक अमेजोन। दोनों ऐसी कंपनियां जो इंडिया के बाहर हैं और जो बहुत मेजर शेयर इंडिया में कैरी करते हैं ई कॉमर्स सर्विसेज का, ई कॉमर्स गुड्स का, ई कॉमर्स सर्विसेज का। तो उनको भी इंक्लूड करने के लिए सेक्शन 204 जो डिफाइन करता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, ये सेक्शन टीडीएस का सेक्शन है जो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है कि which person is liable to deduct TDS। तो यहाँ पे पहले वर्ड था रेजिडेंट, अब बाद में सेक्शन 194 आया तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इंक्लूड नॉन रेजिडेंट आल्सो, so that 194O can be practically implemented on those e-commerce operator those who are operating from outside India like Amazon and Alibaba। और फ्रेंड्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अमेंडमेंट करने के बाद 194O के लिए 1 अप्रैल 2020 से नॉन रेजिडेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया। ऑल्दो फ्रेंड अब 204 की अमेंडमेंट के बाद इट सीम्स दिस सेक्शन इट गोइंग टू बी बिकम वेरी ड्रैकोनिक प्रोविजन, बिकॉज इफ आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गेटिंग एनी रिसिप्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर मैंने यूएस बेस्ड कंपनी का ऑडिट करा और यूएस बेस्ड कंपनी मुझे पेमेंट कर रही है 2 लाख रुपए की, तो अब एज पर दिस सेक्शन दे आर लायबल टू डिडक्ट माय टीडीएस। अगर हम 204 को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं तो वो तो मेरा टीडीएस काटने के लिए लायबल हो गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया 194J की कंडीशंस को पूरा कर दिया। 2 लाख रुपए की पेमेंट है और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। ऑल द फ्रेंड्स जो आपका मेमोरेंडम एक्सप्लेन टू फाइनेंस बिल 2020 है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 204 में जो अमेंडमेंट की गई है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 194O के लिए की गई है। ओके, तो सेकंड वाले एग्जांपल में उनको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा, मतलब जो हमारा सीए वाले केस का एग्जांपल ले रहे हैं उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा और टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट फ्रेंड अगर हम लिटरली सेक्शन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटी है, बट रीडिंग दी मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल उनको एक्सक्लूड किया गया उसके अंदर। ओके, आई एम होपिंग कि आगे आने टाइम के अंदर कुछ और अमेंडमेंट आएगी 204 के अंदर और कहीं ना कहीं मेंशन किया जाएगा एक्सक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर अदर सेक्शन पर्पस। और होप सो फ्रेंड्स सर आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया होगा पार्टिसिपेंट का। अब मूविंग अहेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के सेशन में हम लोग 194Q को डिस्कस करेंगे with respect to section 206C1H। ओके, दोनों सेक्शन 194Q 1/2021 से एप्लीकेबल है, 206C1H ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। दोनों को साथ पढ़ेंगे, कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे और उसको हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स सेक्शन 194Q एंड 206C1H, पहले फ्रेंड हम 206C1H को समझते हैं। 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से आया और ये सेक्शन अप्लाई हुआ सेलर्स पे कि जितने भी सेलर हैं जो गुड्स को बेचते हैं। फ्रेंड्स काइंडली कीप इन माइंड सर्विसेज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ गुड्स हैं। दोज हु आर सेलिंग द गुड्स, जो गुड्स को सेल करते हैं, तो जो भी 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी अमाउंट वो रिसीव करेंगे, ओके, अपने बायर्स से जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उस पे उनको 0.1% का टीसीएस भी कलेक्ट करना है उस पेमेंट पे। ओके, सबसे पहले इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए 2 कंडीशन डाली गई इसके अंदर। जो सेलर है whose gross receipt or turnover of the collector from the business should exceed 10 crores during the immediately financial preceding year। मतलब सेम सेलर की पिछले साल की सेल 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस सेलर ने दूसरे वाले बायर को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा का माल सेल करा हो। अगर 50 लाख से ज्यादा का माल सेल किया होगा उस केस में दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। ये होने की वजह से 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी पेमेंट कलेक्ट करनी है आपको उस पर आपको 1% टीडीएस साथ में कलेक्ट करना है। ओके, और टीसीएस में साथ में एक एफएक्यू ऐड हुआ 17 एफएक्यू सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020। उसमें कहा गया कि जो भी आप पेमेंट कलेक्ट करेंगे दैट पेमेंट इंक्लूडिंग जीएसटी, जो भी आपने पेमेंट कलेक्ट करी उस पे 0.1% और कलेक्ट करके आपको जमा कराना है टाइमली एज ए टीसीएस। अब फ्रेंड इस केस में क्या था, जैसे सेलर की बात करते हैं तो 2 मेन कंडीशन थी। अब जिस केस में क्या था, सेलर की 10 करोड़ की टर्नओवर नहीं थी प्रीसीडिंग ईयर की, 10 करोड़ की सेल ना होने की वजह से क्या हुआ, उस पर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था और ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं हो पा रही थी।
गवर्नमेंट ने देखा कि इसको सेक्शन में लैकुना रह गया, और इस लैकुना की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसमें सेलर की टर्नओवर कम है बट बायर की टर्नओवर ज्यादा है, और हम टीसीएस कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जो हमारा मेन पर्पस है सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का, पर्पस डिफीट हो रहा है आपका। देयरफॉर 1 जुलाई 2021 से सेक्शन 194Q को अप्लाई किया गया। इस सेक्शन के अंदर उन बायर्स को कवर किया गया कि जो बायर हैं, ओके, उन पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी को इम्पोज किया गया 0.1% से, जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 50 लाख से ज्यादा का परचेज किया है एक सिंगल पार्टी से। अगर एक सिंगल पार्टी से 50 लाख से ज्यादा का परचेज किया है और ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो सेक्शन 194Q उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि सर अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे तो क्या होगा। अभी हम आगे आने वाले स्लाइड के अंदर इन सब सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे अभी। ओके, तो अभी हमने बेसिक समझ लिया सेक्शन 194Q आने का और टीसीएस के 206C1H का हमने बेस समझ लिया कि कब कब ये एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले जो टीडीएस और टीसीएस का रेट होगा वो होगा 0.1% का, जो दोनों में कॉमन है। 194Q में आपको जो टीडीएस काटना है वो 50 लाख रुपए से ऊपर के परचेज पे काटना है, ठीक है। सपोज सुनील सर इज अ सेलर एंड आई एम द बायर। मैंने सुनील सर से 55 लाख रुपए की परचेज करी, ओके, तो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट कितना है, सिर्फ 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख पे मुझे 0.1% टीडीएस काट के जमा कराना है सुनील जी को, मतलब सुनील जी को पेमेंट करूंगा मैं, उसमें मैं उनका 5 लाख पे 0.1% काट लूंगा, बाकी की पेमेंट कर दूंगा मैं सुनील जी को। टीसीएस के केस में क्या है, जब मैं अमाउंट 50 लाख रुपए से ऊपर का रिसीव करूंगा उस केस में मुझे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना है और जमा कराना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। टीडीएस के केस में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर फॉलो करना है हमको। I think the important one point I think we need to be stressed is ये time of deduction of collection, ये जरा explain करो। इन केस ऑफ 194Q ये क्या है, बेसिकली पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जनरली फ्रेंड्स क्या होता है, जब किसी हम परचेज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और द पेमेंट तो उसके बाद में करते हैं, ओके, तो जैसे हमने उसकी एंट्री करी बुक्स के अंदर हमारी टीडीएस की लायबिलिटी हो गई, और हाथ के हमको टीडीएस काट के जमा कराना है, ओके, ये हो गया टीडीएस के केस में। जब हम बात करते हैं टीसीएस की, टीसीएस के केस में सेलर पे लायबिलिटी है। अब सेलर ने क्या किया, गुड्स बेच दिए। सपोज मैंने राजीव कोहली जी को गुड्स सेल करे 60 लाख रुपए के, ओके। अब इस केस में मुझे कोई भी टी से जमा नहीं कराना है अभी गुड्स सेल करने पे। जब राजीव कोहली जी मुझे पेमेंट करेंगे, सपोज 2 महीने बाद उन्होंने मुझे पेमेंट करी, तो जब भी उन्होंने मुझे पेमेंट करी उस समय मेरी टीसीएस की लायबिलिटी अकर हुई और मुझे उस हिसाब से भी उनको टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराना है। तो राजीव जी मुझे पेमेंट करेंगे, मुझको 60 लाख के साथ में 0.1% मुझको देंगे एज ए टीसीएस, और वो मैं जमा कराऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अभी बहुत सारे लोग क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं टीसीएस के केस में, वो अपने इनवॉइस पे टीसीएस मेंशन कर देते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टी को पता चले कि उसको टीसीएस की पेमेंट भी करनी है, जिससे कि अकॉर्डिंगली टीसीएस करेक्टली टाइमली जमा हो सके, ओके। तो इनवॉइस पे चार्ज करना कोई लीगल एबिलिटी नहीं है आपकी, आपको उसके हिसाब से बिल्कुल टीसीएस जमा नहीं करना। आपको जो टीसीएस जमा करना है वो सिर्फ आपको जमा करना है बेस्ड अपॉन कलेक्शन। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा उस टाइम पे आपको टीसीएस जमा करना है। सर क्लियर है सुनील जी? हाँ हाँ फाइन। ठीक है, अब सर आगे चलते हैं। अब आप फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा सर, जिस केस में जो बायर है उसकी भी 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और जिस केस में सेलर है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, ओके। अब इस केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, ओके फ्रेंड। इसके लिए अगर हम 206C1H को पढ़ेंगे क्लियरली, वो कहता है कि इफ टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड इन एनी अदर सेक्शन देन 206C1H इज नॉट एप्लीकेबल। डिडक्टेड, काइंडली कीप इन माइंड डिडक्टेड, if TDS is already deducted in any other section, तो 206C1H is not applicable, okay। और जब हम 194Q को पढ़ते हैं, 194Q में कहता है कि if TDS is deducted in any other section, पहली बात, और दूसरी बात साथ में TCS is not deducted in 206C1H, TCS नहीं कटा आपका 206(1)H के अंदर, उस केस में 194Q में आपको TDS काटना है, ओके। तो फिर इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर दोनों केस में, बायर और सेलर के केस में आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में आपको टीडीएस काटना है, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। ये बात ऐसे जस्टिफाई होती है
बिकॉज क्या होता है जो टीसीएस आता है वो लेटर स्टेज पे आता है, द टाइम ऑफ पेमेंट कलेक्शन, और टीडीएस जो आता है वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही आपका आ जाता है। जैसे आपने परचेज करी, इनवॉइस की बुकिंग करी, आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी हो गई। तो जैसे आपने उसको टीडीएस काट लिया, वो ऑटोमेटिकली 20C1S से टीसीएस से बाहर हो गया, क्योंकि टीसीएस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड, उस केस में आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करता। और फ्रेंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर दोनों केस में दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, उस केस में आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। ओके, अब फ्रेंड्स हम इसमें आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसके अंदर कि आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन टीडीएस काट रहा है, कौन टीसीएस काट रहा है। तो फ्रेंड इस केस में प्रैक्टिकली क्या चल रहा है अभी, सारी पार्टियां एक दूसरे पार्टी से डिक्लेरेशन ले रही है कि आपके केस में मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपका टीडीएस काटूंगा, तो इसलिए आप मेरा टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। और दूसरी पार्टी बताती है कि मैं आपका टीडीएस नहीं काटूंगा, तो आप मेरा टीसीएस कलेक्ट कर लेना। तो दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दे आर एक्सचेंजिंग फ्रॉम ईच अदर सो दैट प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन कैन बी मेड। तो फ्रेंड्स अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर जब हमारा न्यू इनकम टैक्स पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉपर्ली, उसमें कहीं ना कहीं प्रोविजन होगा ये चेक करने का कि पैन नंबर बेस पे किसने आईटीआर भरी है और किसका कितना टीडीएस कटा हुआ है। ओके, आगे आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोविजन हमारे इनकम टैक्स पोर्टल में होगा। अब फ्रेंड आगे चलते हैं इसको और समझने के लिए। टीडीएस के केस में फ्रेंड्स अगर अगर हमारा पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर टीडीएस और टीसीएस के अंदर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो 206 सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि एक पुराना सेक्शन है, जो कहीं ना कहीं बड़ा हार्ड सेक्शन है, जो कहता है कि आपका 20% का रेट आपका टीडीएस का लग जाएगा अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है। तो सिमिलर सेक्शन आपका टीसीएस के अंदर है 206CC, वो कहते हैं 5% और ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड आपका टीसीएस लग जाएगा अगर आप पे पैन नंबर नहीं है आपका। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, नया है आपका 206AB में, जिसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। 206AB कहता है अगर कि अगर आपने आईटीआर नहीं भरी पिछले 2 साल की, अगर पिछले 2 साल की आपने आईटीआर नहीं भरी और साथ में आपका 50,000 से ऊपर का टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हो चुका है आपका, ओके, पिछले 2 सालों का, हर साल का 50,000 रुपए, उस केस में आपका 206AB अट्रैक्ट हो जाएगा। और उस केस में आपका टीडीएस का रेट होगा ट्वाइस द रेट ऑफ 5%, विच एवर इज द हायर। 206AB के अंदर अगर आपने पिछले 2 साल की आईटीआर नहीं भरी और आपने आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा का कटा हुआ टीडीएस और टीसीएस, उस केस में 206 अट्रैक्ट हो जाएगा और हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लीकेबल होगा एंड रेट विल बी 5% और डबल द रेट स्पेसिफाइड आपको वो अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 194J अप्लीकेबल है, तो फ्रेंड 206AB सिर्फ 194Q पे नहीं लगता, इट इज अप्लीकेबल ऑन ऑल द सेक्शन। जितने सेक्शन हमने पहले पढ़े अभी 194C, 194J, 194H, इन सब पे आपका 206AB अप्लाई होता है आपका। उस केस में अगर मैं 194J का एग्जांपल लेता हूँ कि किसी प्रोफेशनल को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और उस प्रोफेशनल के पास पैन नंबर नहीं है, उस केस में ट्वाइस द रेट हो गया 20% और 5% विच इज हायर, तो उस प्रोफेशनल में 20% का टीडीएस कटेगा फिर आपका। और फ्रेंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और 206CC टीसीएस के केस में क्या होगा, ट्वाइस द रेट ऑफ 5%, ठीक है, सेम आपका टीसीएस का कटेगा, आपका टीसीएस का रेट है। अब फिर कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ना पैन नंबर है और पैन नंबर नहीं है, तो सर ऑब्वियसली हमने आईटीआर भी नहीं भरी। अब उस केस में क्या होगा फ्रेंड, तो उस केस में जो भी हायर रेट होगा आपका दोनों का, 206AA का और 206AB का, वो रेट आपका अप्लीकेबल होगा। और जनरली आपका क्या होगा, वो रेट 206AB का ही होगा आपका, 206AA का होगा 20% का, अगर नॉर्मल बात करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं लॉटरी की, ओके, अगर हम बात करते हैं लॉटरी की, ओके, तो फिर वहां तो रेट कितना है आपका, 30% का रेट है, तो उसको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शन के अंदर कि लॉटरी वॉटरी को 206AB में से एक्सक्लूड कर रखा है। और फ्रेंड यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा 194Q, 206C1H। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कि इन दोनों में कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो डेफिनेशन है गुड्स की, वो हम रेफर करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट। गुड्स किसको माना जाए, किसको ना माना जाए, जैसे कि सिक्योरिटीज, जो हमारे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको एज पर सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 उनको गुड्स नहीं माना गया है। ओके, तो उनको गुड्स जब नहीं माना गया तो 206C1H उस पर अप्लीकेबल नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं 194Q का है, रेप्लिका ऑफ टीसीएस सेक्शन है, वो होने की वजह से सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं माना जाएगा यहाँ पर। ओपन इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, whether debit note or credit note need to be considered while deduction of TDS or collection of TCS। जब
हमें क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट को कंसीडर करना है 194Q के अंदर और 2061H के अंदर, जो इन टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन कंप्लाई करना है। तो फ्रेंड हमें कोई भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कंसीडर नहीं करना है व्हेन वी आर कंप्लाइंग फॉर दिस टीडीएस प्रोविजन स्पेशली। कैसे? क्योंकि टीडीएस को काटना है वो हमें परचेज के बेस पे काटना है कि जो भी हम परचेज करेंगे उस पर काटना है। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कहीं ना कहीं कंसिडरेशन कब आता है? जब हम पेमेंट करते हैं जनरली। ओके, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कंसिडर नहीं करना है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग सेक्शन 194Q। बट फ्रेंड जब हम बात करते हैं 2061H की कलेक्शन की, प्रैक्टिकली व्हाट हैपन कि जब हम किसी पार्टी एज ए सेलर हम किसी पार्टी से पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हमें पेमेंट को एडजस्ट करने के बाद हमें पेमेंट देता है। ओके, ऑल्दो फ्रेंड इसके भी कोई क्लैरिटी नहीं है एंड समहाउ वी आर वेटिंग फॉर द सर्कुलर फ्रॉम द सीबीडीटी ऑन सेक्शन 194Q कि उस केस में क्या होगा। ओके, और ये वाला पॉइंट इन्होंने अपने सर्कुलर में भी एक्सप्लेन नहीं करा। क्या एक्सप्लेन नहीं करा? कि जो मुझे पेमेंट मिल रही है उस वाली पेमेंट के अंदर कुछ चार्जेस मेरे डिडक्ट हो गए हैं ऑलरेडी, या फिर मेरा कोई डेबिट क्रेडिट नोट था वो एडजस्ट हो गया है, तो अब वो पेमेंट करने के बाद जो मुझे पेमेंट मिल रही है तो टीसीएस मुझे सिर्फ जो पेमेंट कलेक्ट करी है एक्चुअली उस पर एडजस्ट करना है, या फिर जो मेरा एक्चुअल अमाउंट ड्यू था उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर मैं 2061H को लिटरली इंटरप्रेट करूं तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है रिसीव, कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट करके जमा करना है। ओके फ्रेंड, ऑल्दो वी आर होपिंग सम क्लैरिफिकेशन कि हमें कोई क्लैरिफिकेशन मिलेगी इसके ऊपर और हम उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने आपसे फ्रेंड अपना व्यू पॉइंट शेयर करा है कि टीडीएस के केस के अंदर तो आपको डेबिट और क्रेडिट नोट कंसीडर नहीं करना है। टीसीएस के केस में आपको जो पेमेंट रिसीव होगी उसके हिसाब से आपको टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराना है। अब फ्रेंड आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिसिटी को बाहर कर किया गया था एज ए गुड्स की डेफिनेशन से, तो वो सिमिलरली 194Q के लिए भी क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। ओके, जो टीसीएस के लिए गुड्स नहीं थे वो गुड्स हमारे इसके लिए भी गुड्स नहीं होंगे आपके 194Q के लिए। मूविंग अहेड, सॉफ्टवेयर। टीडीएस शुड बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो हम टीडीएस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तो क्या उस पे हमें 194Q अप्लाई होगा? फ्रेंड इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जब हम कोई वन टाइम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो जनरली उस पे 194J या 194(5) में टीडीएस काटते थे। इफ यू आर बाइंग फ्रॉम रेजिडेंट तो 194J में काटते थे, एंड इफ यू आर बाइंग फ्रॉम नॉन रेजिडेंट हम 194(5) में इसका टीडीएस काटते थे। ओके, एंड फ्रेंड अगर उस सॉफ्टवेयर को हम दोबारा रीसेल करते थे, अगर हम उसको दोबारा रीसेल करते थे तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता था एज पर नोटिफिकेशन नंबर 21/2012। क्लियर है? तो फ्रेंड जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि जब हमने फर्स्ट टाइम परचेज करा तो ऑलरेडी 194 में 194J में या 195 में कट गया, और 194 की क्यू की मेन कंडीशन क्या कहती है, अगर टीडीएस ऑलरेडी कहीं कट गया है आपका तो 194Q नहीं अप्लाई होगा। तो पहले जो लैग है आपकी वहां पे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। बट फर्दर जब वो सेम सॉफ्टवेयर को मैंने किसी और को फर्दर बेचा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो उस केस में नोटिफिकेशन आ गया तो उसमें 194J और 194(5) एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो फ्रेंड जब वो ट्रांजेक्शन 194(5) और 194J से एक्सक्लूड हो गई तो कहीं ना कहीं 194Q जो है वो कहीं ना कहीं पिक्चर में आ गया, बिकॉज जो मेन कंडीशन है 194Q की कि टीडीएस किसी सेक्शन में कट गया हो आपका, वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए अगर सेकंड ट्रांजेक्शन होगी और वो कंडीशन पूरी करेगा 194Q की, तो उस केस में आपका सॉफ्टवेयर पे भी आपका टीडीएस कट जाएगा 194Q के अंदर। और फ्रेंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल फ्रेंड अभी रिसेंटली जजमेंट आया है मार्च में ही, 2 मार्च 2021 को, इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी वर्सेस अदर्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर है उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज इट इज प्योर परचेज, कोई सर्विस का एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जो भी हम परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर की उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, स्पेशली फॉर 194(5) जो हम लोग नॉन रेजिडेंट से परचेज करते हैं। सर आगे चले, सुनील जी आगे चले। जी सर, जी सर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम सेक्शन 194Q को और टीसीएस को अप्लाई करते हैं तो 50 लाख रुपए की लिमिट है, वो हमें कब से देखनी है? तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि 17/2020 जो सर्कुलर आया था टीसीएस के लिए, उसने कहा था वो हमारा 1 अक्टूबर 2020 से हमारे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए थे। उस सर्कुलर ने कहा था लेकिन आपको जो लिमिट अब देखनी है 50 लाख रुपए की, वो पूरे साल की देखनी है आपको। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपको पूरे साल की लिमिट देखनी है 50 लाख रुपीज की लिमिट को कंसिडर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सेम प्रिंसिपल लगेगा आपको टीडीएस के ऊपर भी, और टीडीएस में जो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई हो रहा है
लिमिट चेक करने के लिए वो हमें चेक करना है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। अगर पूरे साल में हमने 50 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करी है तो हमारा टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अब अनदर क्वेश्चन आता है फ्रेंड जीएसटी का। जैसे कि हम टीसीएस के अंदर क्या करते थे, जो हमें नेट अमाउंट रिसीव होता था इंक्लूडिंग जीएसटी, उसके ऊपर हम टीसीएस लगाते थे और जमा कराते थे। ओके फ्रेंड, दिस इज कॉमन प्रैक्टिस एंड दिस इज समहाउ क्लैरिफाइड बाय द सर्कुलर आल्सो कि जीएसटी पे टीसीएस कलेक्ट करना है और आपको जमा कराना है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं 194Q की। अब तक कोई इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है। इससे फ्रेंड मेरा व्यू ये है, ऑल्दो वी कैन रिसीव सम क्लैरिफिकेशन सून, इस केस में क्या होगा कि जो हम जितने भी टीडीएस के प्रोविजन देखते हैं उन सब में क्या करते हैं, जीएसटी वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं, चाहे हम 194C की बात करें या 194J की बात करें। और कहीं ना कहीं 194Q में जो टीडीएस लगना है वो लगना है आपका परचेज वैल्यू के ऊपर। ओके, अब जो इनवॉइस आया परचेज का मेरे ऊपर, अब मुझे उसमें से परचेज वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। वहां पे इनवॉइस वैल्यू नहीं है बेसिकली वर्ड, ओके, परचेज वैल्यू वर्ड है वहां पे। तो परचेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो पार्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, although friend it is my opinion, some clarification may come in the future, then we get the exact clarification, but I am sharing with you my opinion कि 194Q में TDS need to be deducted on the purchase value और purchase value should be excluding GST. ओके, तो इन केस ऑफ टीसीएस हमको जीएसटी को इंक्लूड करना है और इन केस ऑफ टीडीएस हमें जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। मूविंग अहेड, अगर फ्रेंड्स मेरी मल्टीपल यूनिट्स है, ओके, मेरी मल्टीपल यूनिट्स हैं, सपोज आई एम ए कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मेरे एक दिल्ली में ब्रांच है, यूपी में ब्रांच है, बॉम्बे में ब्रांच है मेरी, और तो इस 194Q के पर्पस से 206 के पर्पस से मुझे सबको मर्ज करके देखना है, बिकॉज मेरा पैन नंबर एक ही है, तो मुझे पैन नंबर को बेस बनाना है इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए, उन सबको अलग अलग चेक नहीं करना मुझे। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपस में डील करता हूँ, मेरी दिल्ली में एक ब्रांच है, एक ब्रांच मेरी यूपी में है, वो मुझे आपस में सेल कर रहे हैं गुड्स, तो उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज क्या पैन नंबर हमारा एक ही है, दो डिफरेंट पैन नंबर नहीं है तो डिफरेंट एसएससी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं सेम ब्रांच से डील कर रहा हूँ तो ब्रांच के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। whether any changes need to be done in the ERP, yes फ्रेंड, हमें अपने सिस्टम से बहुत सारे चेंजेस करने हैं जिससे कि हम एक करेक्ट टीडीएस का रेट को कंप्लाई कर सके। बिकॉज जैसे फ्रेंड आप सबको पता है कि जब हम टीडीएस का रेट हमें चेक करना होता है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस समय हम पेमेंट कर रहे हैं उस समय हमें टीडीएस के रेट को डिसाइड करना होता है। अगर हमने उस समय टीडीएस के रेट को गलत डिसाइड कर लिया या लोअर रेट डिसाइड कर लिया तो हो सकता है कि कंपनी को बाद में एज एन एसेसिन डिफॉल्ट बन के इंटरेस्ट भी पे करना पड़े और रिमेनिंग टीडीएस अपने जेब से पे करना पड़े। तो कहीं ना कहीं इट बिकम पैरामाउंट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू डिसाइड द टीडीएस रेट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। फ्रेंड एक छोटा सा मैंने आपके लिए समरी बनाई है यहाँ पे जिससे कि हम 194Q और 206 को कंप्लीटली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आप सबके चैट बॉक्स में रिव्यू चाहूंगा कि आप लोग उसका रिप्लाई करें विदाउट सीइंग द आंसर। सिनेरियो 1 के अंदर द बायर्स टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 करोड़ एंड सेलर टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 करोड़ और ट्रांजैक्शन वैल्यू इज मोर देन 50 लाख। तो फ्रेंड इस केस में क्या क्या होगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बायर और सेलर दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है। तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा, जहाँ दोनों केस एप्लीकेबल होते हैं तो हमें टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। इसके अंदर जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मूविंग हेड टू सिनेरियो नंबर 2, अगर जो बायर है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, सेलर की 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है बट ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से कम है, तो इस केस में क्या होगा, तो फ्रेंड इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। राजीव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिकॉज दोनों कंडीशन को साथ पूरा करना जरूरी है, सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो, या बायर की 10 करोड़ से ज्यादा हो और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो। मूविंग अहेड, सिनेरियो नंबर 3, बायर की 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर की 10 करोड़ से कम है और परचेज वैल्यू क्या है आपकी 10 करोड़ 50 करोड़ से 50 लाख से ज्यादा है। तो फ्रेंड इस केस में क्या हो रहा है, जो सेलर है उसकी कम है तो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे, सिर्फ बायर की ज्यादा तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसलिए क्या होगा, आपको 194Q में टीडीएस काटना होगा इस केस में। सिनेरियो नंबर 4 के अंदर बायर की 10 करोड़ से कम है, सेलर की 10 करोड़ से ज्यादा है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है। इस केस में क्या है, बायर की कम है तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो इस केस में टीसीएस कटेगा आपका 0.1%। होप एंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। सिनेरियो नंबर 5 के अंदर बायर और सेलर दोनों की 10 करोड़ से कम है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो ना टीडीएस एप्लीकेबल होगा ना टीसीएस एप्लीकेबल होगा, बिकॉज जो बेसिक कंडीशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है आपकी। सिनेरियो नंबर 6 के अंदर
जो सेलर है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा है, बट ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है आपकी 50 लाख से कम है, तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, देयरफॉर नो टीडीएस नो टीसीएस। और फ्रेंड ये क्लियर है आपको? बस 5 मिनट और लूंगा फ्रेंड आपके। 206AA और 206AB। 206AA बेसिकली अगर पैन नंबर नहीं है आपका तो उस केस में आपका 20% का टैक्स कटेगा आपका, ओके, ट्वाइस द रेट और 10% whichever is higher, सॉरी स्पेसिफाइड रेट और 20% whichever is higher, तो जनरली 20% का ही टैक्स कटता है आपका 206AA में अगर पैन नंबर नहीं होता। अब जो नया सेक्शन आया है आपका 206AB दैट टॉक अबाउट नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। जो लोग अपनी आईटीआर नहीं भरती उन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की गई है इस वाले सेक्शन के अंदर। इसमें क्या किया गया है, अगर आपने 2 साल की आईटीआर नहीं भरी आपने और ईच ईयर आपका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा हुआ है, टीडीएस और टीसीएस, तो उस केस में आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तो दैट विल बी ट्वाइस द रेट एज पर द प्रोविजन और 5% whichever is higher। और फ्रेंड 206 आपको क्लियर हुआ है, बिकॉज दिस सेक्शन आपके सारे सेक्शनों पे लगने वाला है एक्सेप्ट 192, 192A, 194B, 194BBB, 194LBC और 194N। मैंने जैसे आपको पता है 194B और 194BB के अंदर ऑलरेडी 30% का रेट है आपका, एक हायर रेट ऑलरेडी है, तो उसको फिर यहाँ पे डबल नहीं कर रहे उस रेट को, ओके, क्योंकि 30% इज ऑलरेडी वेरी हायर टीडीएस रेट, ओके, एंड दिस सेक्शन इज गोइंग टू एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1, 2021। ओपन इज इट क्लियर? यहाँ कोई डाउट नहीं है? अपन आपके मन में डाउट होगा सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसने आईटीआर फाइल करी नहीं करी? तो फ्रेंड इस केस में हमें न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे प्रोविजन होगा जहाँ पे हम पैन नंबर डाल के ये चेक कर सकते हैं कि हमने आईटीआर फाइल, दूसरे पर्सन ने आईटीआर फाइल करी नहीं करी, तो उसका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उन रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर। और अभी क्या हो रहा है प्रैक्टिकली हम लोग उनके फिजिकली डिक्लेरेशन ले रहे हैं, ओके, ईमेल पर डिक्लेरेशन ले रहे हैं और उसके बेस पे अपने सिस्टम्स को इनेबल कर रहे हैं जिससे कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग प्रॉपर रेट ऑफ टीडीएस उन पे अप्लाई कर सकें। ये फ्रेंड ये सेम सेक्शन रेप्लिका है बिल्कुल इस सारे सेक्शन का। ये था हमारा टीडीएस का और ये टीसीएस का सेम वही। अगर पैन नंबर नहीं है आपका तो ट्वाइस द रेट और 5% whichever is higher टीसीएस कलेक्ट होगा आपका। और सेम 206CA अगर आपने लास्ट 2 साल की आईटीआर नहीं भरी तो आपका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा का कटा है इन ईच फाइनेंशियल ईयर है, तो आपका टीसीएस का रेट ट्वाइस द रेट और 5% whichever is the higher वो आपके केस में एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन भी जो टीसीएस के बाकी 3 सेक्शन और हैं उन सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो मोटर व्हीकल है आपका, चाहे वो आपका सेल ऑफ स्क्रैप है, चाहे आपका सेल ऑफ वुड एंड ऑल अदर जो सेक्शन है सब पे अप्लाई होगा सेक्शन 206CA। और फ्रेंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई थिंक इट इज टाइम टू टेक सम क्वेरीज। आइए मैं कुछ कर ले लूं राजेश सर? यस सर ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स में है ना, सारे ले लो। विद ड्यू परमिशन सर आई एम टेकिंग। अरे प्लीज सर। मोनी जी का क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, सर इन केस ऑफ एक्सीड टीडीएस इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑफ सम एम्प्लॉय डू दे हैव एनी राइट टू क्लेम रिफंड फ्रॉम द कंपनी? अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीड टीडीएस कंपनी ने जमा करा दिया है और उसका एम्प्लॉय में जमा भी हो गया है बेसिकली, तो उस केस में फ्रेंड जो आईटीआर भर के आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो उस रिफंड वाले अमाउंट को। अगर ऑल्दो एम्प्लॉय इज लीगली लायबल टू कलेक्ट सेम अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर आल्सो बिकॉज उसका उतना टैक्स बनता नहीं था बट कंपनी ने ज्यादा काट के जमा करा लिया, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड नहीं मिलता, ऑल्दो उसको आईटीआर भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिल जाएगा बट किसी वजह से नहीं मिलता, तो लीगली लायबल है कंपनी उसको पे करने के लिए, लीगल राइट है एम्प्लॉय का। TDS on salary 192 employer has added another income। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। हम जनरली 2 तरह की इनकम ऐड करते हैं सैलरी के अंदर, अदर सोर्स की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब आगे आते क्वेश्चन पढ़ते हैं। In case PF contribution self is greater than 2.5 lakh rupees, is there any TDS requirement? फ्रेंड्स अगर हम लोग सेल्फ का कंट्रीब्यूशन 2.5 से ऊपर का डिडक्ट होता है अगर उस केस में क्या है मतलब हमें कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा वो हमारा एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो जो हम एम्प्लॉयर को अपना पीएफ हमारा डिडक्ट करता है तो 2.5 अगर हम खुद कंट्रीब्यूट करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एम्प्लॉयर की लिमिट है 7.5 लाख रुपए से ऊपर की, जो भी रिसेंटली अमेंड हुई है कि अगर एम्प्लॉयर 7.5 लाख रुपए से ऊपर का देता है तो उस केस में हमें उससे ऊपर वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है। अनुपमा चुप जी का क्वेश्चन है सेक्शन 194 115 BSc रीड विद दिस रूल। यस आई करेक्ट माय सेल्फ फ्रेंड्स कि सेक्शन 115 BSc के अंदर जो हमको अप्लाई करना है
उसमें रूल 1 रीड विद रूल 21G, उसके अंदर हमें फॉर्म 10 IE भरना है। पहले मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी थी कि ITF फाइल करते हुए हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी रिज्यूम में जाना है, बट उससे पहले हमें फॉर्म 10 IE भरना है ऑनलाइन और सिलेक्ट करना है कि हमें न्यू स्कीम में जाना है या नहीं जाना है। ये उनके लिए है जिनको नई स्कीम में जाना है, जिनको नई स्कीम में नहीं जाना, पुराने में कंटिन्यू करना है, उनको कोई फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितेंद्र ठाकरे जी का क्वेश्चन है, if in case 194A interest paid to NBFC, if we deduct this for जितेंद्र जी नहीं, इट इज इनकरेक्ट कि आप अगर पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 31 मार्च को जमा कराते हैं और उसकी मंथली जमा कराने की लायबिलिटी थी, तो उस केस में आपको मंथली जमा कराना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा आपको। फिर 31 मार्च को करने से आपकी कंप्लायंस कंप्लीट नहीं होगा आपका। अमित जी का क्वेश्चन है, सर हम व्हाट इज द टीडीएस रेट ऑन रेंट पे टू एनआरआई। सर अगर हम किसी एनआरआई को रेंट पे करते हैं तो उसकी इनकम सेक्शन 195 में टैक्सेबल होती है, और 195 में जो उसका रिस्पेक्टिव टैक्स का रेट है उसके हिसाब से उसको टीडीएस काटना पड़ेगा हमें। ओके, मतलब जो रेंटल इनकम होती है वो हमारे हाथ में एज पर स्लैब टैक्स होती है, तो अगर उस नॉन रेजिडेंट का जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स काटना है। हाँ, इस टीडीएस एप्लीकेबल ऑन रेंट पेड टू एग्जीबिशन स्टॉल। यस नितिन चावला जी, अगर हमने एग्जीबिशन के लिए कोई भी रेंट पे करा है हमने, तो उस केस के अंदर हम लोग 194C में टीडीएस काटते हैं। द रीजन इज दैट जो हमारा वो प्रमाइसी जो जगह लेने का पर्पस था, सिर्फ जगह लेने का पर्पस नहीं था, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, अपने प्रोडक्ट को सेल करना भी पर्पस था। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का पार्ट बन जाता है कंबाइंड सर्विसेज का, और 194C में टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है उसके अंदर। 194 IE में लिमिट 50 लाख इस पर सेलर और पर बायर। तो सर ये 50 लाख की जो लिमिट है ये बायर और सेलर की लिमिट नहीं है, ये प्रॉपर्टी की लिमिट है। अगर प्रॉपर्टी आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल करी है, तो बायर सेलर आपके 2-3 है, तब भी आपके केस में लायबिलिटी है आपके उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरजीत सिंह जी का, इफ आई एम पेइंग 80,000 रुपीज पर मंथ टू लैंडलॉर्ड एंड 30,000 पर मंथ सोसाइटी चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, इज टीडीएस एप्लीकेबल? गुड क्वेश्चन। अब क्या है, जो आपने सोसाइटी के चार्जेस पे करे हैं, अगर वो आपने लैंडलॉर्ड को पे करे हैं आपने अगर, ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी 194 IB में रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपने डायरेक्टली सोसाइटी को पे कर दिया आपने, तो उस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी आपकी। अमरजीत जी, डू वी नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन हॉस्पिटल बिल? नो सर, अगर 194J में टीडीएस काटने की लायबिलिटी थी वो हॉस्पिटल थी, अगर डॉक्टर को पेमेंट कर रहे हैं। अगर जनरली क्या है, देखो अगर कोई एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज हुआ है और कंपनी ने पेमेंट करी है हॉस्पिटल को, तो 194J में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी, वो 194C में ही टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी। वो डॉक्टर्स के लिए है। अगर हॉस्पिटल डॉक्टर को पेमेंट करेंगे, अगर ट्रीटमेंट हुआ है आपका एम्प्लॉय का और कंपनी पेमेंट कर रही है, तो 194C में काटना है आपका। If profit element is not there but invoice is not there, whether TDS is applicable? अमरजीत जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस की बात करते हैं और उस केस में हमें सेपरेट इनवॉइस नहीं दिया, बट एक ही इनवॉइस में प्रोफेशनल चार्जेस ही मेंशन कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं हमने जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है वो भी मेंशन कर दिया है, तो इस केस के अंदर कहीं ना लिटिगेशन रहेगी फ्यूचर में। क्या लिटिगेशन रहेगी कि जो आपका प्रॉफिट का एलिमेंट था, जो आपको आउट ऑफ पॉकेट मेंशन करना था, वो आपने क्या किया, जो ऊपर प्रोफेशनल सर्विस है उसमें मेंशन कर दिया होगा। तो सेफ साइड करने के लिए हम एक सेपरेट इनवॉइस इशू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग इनटू सेम इनवॉइस, बेटर रहेगा। कैलिब्रेशन चार्ज अंडर 194C और 194J, कैलिब्रेशन चार्ज करो जी, क्या मतलब कैलिब्रेशन? तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका भुवेश कुमार जी का क्वेश्चन है, बिकॉज बैंक हैज नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। भुवेश जी, क्या होता है, जो फॉरेन बैंक है बेसिकली उनके पास तो 195 रीड में 197 में नो डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है, बट 194A के अंदर उनको इंटरेस्ट के लिए अलग से एग्जम्प्ट कर रखा है 194A के अंदर की बैंक को अगर पेमेंट करेंगे तो हमें टीडीएस काटना नहीं है इंटरेस्ट के ऊपर। अभय छारिया जी का क्वेश्चन है, C194O, व्हाट अबाउट जीएसटी पोर्शन? अब अगर हम बात करते हैं 194O की, जो वहाँ पे वो जीएसटी को मिला के वहाँ पे आपका वो कर रहा है बेसिकली 194O, हाँ 194O के अंदर जो आपको पेमेंट मिली है 5 लाख से ज्यादा की, वो कंप्लीट अमाउंट है सेल के और सर्विस के अगेंस्ट, तो जीएसटी मिला के देखा जाएगा। यस, 194(2) इज एप्लीकेबल ऑन एनजीओस आल्सो, एनजीओ को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कवर में डिस्कस कर चुका हूं धीरज जी आपसे ऑलरेडी। इफ पेमेंट सेट ऑफ अगेंस्ट सेल परचेज अमाउंट वेदर, यस फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि हम एक ही पार्टी को सेल भी करते हैं, उससे परचेज भी करते हैं, और जब पैसा मिलता है तो परचेज वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद मिलता है।
अब जब वो एडजस्ट करने के बाद हमें पैसा मिल रहा है, तो जितना रिमेनिंग पैसा मिल रहा है क्या उस पर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है या नेट अमाउंट पे कलेक्ट करना है? ऑल दो फ्रेंड्स, इसमें ना ओपिनियन है, अभी ओपिनियन ये है कि आपको पूरे अमाउंट पे करना है, बिकॉज ऐसे तो क्या होगा, जो आपका सेक्शन का पर्पस है ट्रांजेक्शन ट्रैक ही नहीं हो पाएगी। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी ऑन दिस पॉइंट कि नेट ऑफ होगा नहीं होगा, बट ऑन सेफर साइड इज माय ओपिनियन कि आप जो आपका कंप्लीट अमाउंट है आपका उस पे आपको टीसीएस जमा कराएं उसके ऊपर। 26AB not return filed but TDS is more than 50,000 rupees. T26 yes. अगर आपने TDS अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी अमित जी और आपका TDS हर साल का 50,000 ज्यादा कटा हुआ है तो 206AB अप्लाई हो जाएगा और आपको हायर रेट ऑफ TDS काटना पड़ेगा। बट 10EIE नॉट अवेलेबल ऑन साइट। यस, फॉर्म 10IE अभी आया नहीं है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1 और 2 वीक्स में आ जाएगा। Sir, you said no form is yes. Parveshwar ji, I am changing my words. I am sorry for that, but there is a requirement of form. Okay. अतुल जी का है sir, if no resident paying salary to employee, then TDS return will be 24Q. If sir, if no resident paying salary to employees. सर अगर नॉन रेजिडेंट सैलरी पे कर रहा है अपने एम्प्लॉइज को और उसके जो उसके एम्प्लॉई है वो रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट कर रहा है तो सर उसको तो कोई लायबिलिटी नहीं है टीडीएस काटने की। भाई भी आपका क्वेश्चन उल्टा है, आपका जो डिडक्टर है वो रेजिडेंट है, जो आपका रिसीवर है वो नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में आपको 27Q बनना है, ना 24Q बनना है, ना 26Q बनना है, आपको 27Q जाएगा अगर आपका जो रिसिपेंट है वो नॉन रेजिडेंट है आपका। अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो 24Q में जाएगा, सॉरी, और अगर आपको अदर दिन सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो 27Q जाएगा आपका। अरे सर Q&A तो हो गए, कुछ लोगों ने हाथ रेस कर रखे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है ना कुछ बोलने की। नहीं, वो उनके वही है क्वेश्चन जो उन्होंने किए हैं। हमारे कोहली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। मेरा ख्याल है लास्ट ना संगन जी क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल कंपनी बेस्ड इन दुबई और यूएसए वर्क फ्रॉम होम हो गया इंडिया, तो वहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं तो टीडीएस काटेगा नहीं, उनका एम्प्लॉयर फॉरेन वाला जो लोकल इंडियन है उसको अपने इनकम डिक्लेयर करके अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट ही मेंट बाय दिस क्वेश्चन। यस, जो नॉन रेजिडेंट है यूएस वाला ना सर, उस पे कहीं भी आपका 192 में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है सर उसके ऊपर। उस पे जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी है वो सिर्फ रेजिडेंट के ऊपर है, तो एम्प्लॉय को खुद ही उसको टीडीएस काट के, मतलब खुद ही आपको अपना उसको एडवांस टैक्स जमा करना है उसके ऊपर और अपने आईटीआर फाइल करते हुए वो करना है, मतलब टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। So friends, I am mentioning my email ID and phone number. Agar still you have any query, you can contact me through my number or email ID. I will try to resolve your query as soon as possible. So sir, with this note, I want to express my sincere thanks to Rajesh ji and his entire team for organizing this session, and convener and deputy convener Rajiv Kohli ji and Sunil ji for bearing me for last 2 hours and giving their inputs also during the session, which make this session very interactive and very fruitful. Hope all the participants enjoy the this session. Thank you very much to host and all the participants. Over to Rajesh ji. Thank you Sangam bhai for a very good and detailed deliberation on the subject and taking all queries. However, I request our Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks, sir. संगम जी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस डेलिब्रेशन। आपने संगम कर दिया, टीसीएस और टीडीएस दोनों का बिल्कुल बना दिया। Very detailed presentation, there are lots of questions answers and lots of questions and clarities you have made, because there's so many changes. Basically the government now wants lots of data mining. So basically many years back in the 70s we had a tariff item 68 where 1% tax was introduced for excise to just get the information. So basically all my provisions I want the compliances, and the withholding tax would be a more revenue earning for the government. So the TDS implication and the prosecution for non-compliance would be much higher in TDS, because things are there, and entire data mining for the uploading and returning going to go from the TDS provisions, and the thrust is on the TDS to much greater extent. और आपने सारे अच्छे सारे क्वेश्चन आंसर बनाकर presentation, the PPT was very good with all those deliberations. Thank you very much for the nice work, good effort. We really are thankful for all members of our study session. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Thank you.